What is the current investment climate? बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी लैंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। As I said, this podcast name is on point, so we are going to keep it for investors, things that matter the most. So this is a thing where raw material is going to be decreasing day by day. What is your feel on that? कि अभी जो old school investor मैं उनको बुलाना चाहूँगा, are they comfortable with the new age investment जो अभी हो रहा है, और या वो still पुराना ही invest करने में ज़्यादा मानते हैं? लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि इंदौर को ही देखें हम, so in Indore, if we talk about geography, there are 4 to 5 big pockets where the total Indore is divided into. As a managing director of Total Realty Solutions, आपके भी कई mandates हैं इंदौर में, इंदौर के बाहर. Everyone knows Gajendra ji is someone who has an in-depth experience of tier 1 cities like Mumbai and Bangalore real estate. क्या होता है कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वो आइदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है और अदरवाइज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेबी। इंदौर का मार्केट एक सीजनड सेकेंडरी मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे मैंडेट बेस प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल टीम्स ये सारी नहीं हुआ करती थी। आज के समय में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंडेट्स आ गए। देखिए, मैंडेट का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट बिल्डर प्लान कर रहा है लेके आने का, और उसकी जो पूरी की पूरी सेल्स है, वो पूरी की पूरी सेल्स किसी एक मार्केटिंग कंपनी को दी थी। वन बिगेस्ट माइक्रो मार्केट यू वुड बाय टुडे एंड होल्ड फॉर 5 years। सबसे पहला तो प्रोडक्ट तो प्लॉट होना चाहिए। एरिया जो है वो खंडवा रोड बहुत अच्छा है। बिगेस्ट मिस्टेक इन्वेस्टर्स कीप रिपीटिंग इन इंदौर, ओवर इन्वेस्टमेंट है। मानिए कि 2 करोड़ रुपए अगर अपन को लगाने हो प्रिसाइसली, एंड नॉट टू डाइवर्सिफाई, जस्ट टू पुट इट इन वन सॉर्ट ऑफ यूनिट, व्हाट वुड बी योर फेवरेट वन? Hi, this is Sadan Mehta, and welcome to On Point Real Estate. I'm the owner of Mayfair Group and the host of this podcast. Today with us, we have someone very special, someone I've worked with, someone I'm very close with, Mr. Gajendra Narang. Gajendra ji is someone who has an in-depth experience of tier 1 cities like Mumbai and Bangalore real estate, as well as जो इंदौर का market है, उसमें he's someone who's the oldest in the industry, who's the senior most, who has seen this industry grow from very unprofessional to a very professional market that it is becoming now. As I said, this podcast name is on point, so we are going to keep it for investors, things that matter the most, and this is where we start. Thank you so much, Gajendra ji, for joining us in this podcast. So, going in the first question, for investors watching, as I said, what is the current investment climate? जो भी इंदौर में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट चल रहा है, उसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा? अभी बायर्स की विंडो चल रही है आपके हिसाब से, या फिर मार्केट ऑलरेडी ओवरप्राइस्ड हो चुका है इंदौर का? व्हाट डू यू फील? See, Siddhant, first of all, hi to all your viewers and the investors who are seeing this podcast. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें कि बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी लैंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। सो दिस इज अ थिंग वेयर रॉ मटेरियल इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग डे बाय डे, and because of that prices will never go down. But what happens that because in some pockets lot of buyers are there coming, and in some pockets lot of people builders start construction and all, ये देख के कि यहाँ पर आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हो गए। बट होता ये है कि कई बार डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, दैट इज डिफाइनिंग the appreciation as well as what are the infrastructural developments and other things coming in that particular area. So these all things define that which is the place where right investment should be done. And जहाँ तक आपने मोमेंटम की बात करी या आपने एक टच या फील की बात करी कि आज हम इंदौर को कैसे देखते हैं, तो still at this scenario where somewhat prices are not going very fast, which was there before 6 to 8 months, but then also I am positive as far as the growth is concerned. ओके, सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आप ये बोल रहे हैं कि इंदौर में अभी प्राइसेस और बढ़ेंगे। इट्स क्वाइट अ पॉजिटिव मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करें, सो जो टायर 1 सिटीज़ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो गया, नंबर 1। सेकेंडली, अगर हम ओवरऑल इकोसिस्टम की बात करें, इंडिया में जो बायर्स हैं,
उनकी जो टिकट साइज़ है, उसके हिसाब से भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में उनकी अप्रोच से बाहर का मार्केट हो चुका है एज़ फार एज़ द बाइंग इज़ कंसर्न्ड, करेक्ट। सो वहाँ पर रेंटल का बहुत अच्छा मार्केट है, बट ये जो लोग हैं जो वहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, परंतु उनके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। So they also do the investment in tier 2 cities, in which they particularly see some cities which are very nice, in which I think Indore is one of the best one. जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन जो एग्जैक्टली बात कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। I always like to hear opinions on Indore's property market rates, overrated है कि नहीं, and everyone has their own opinion in terms of areas especially. हालांकि बहुत सारे opinions बहुत common आते हैं of course. एज अ फॉलो अप, अगर किसी इन्वेस्टर के पास 2 करोड़ है, let's say, or 2 crore plus, quite a substantial amount. From what I understand with my knowledge of real estate, 2 crores is a very fair investment in Indore. I'm sure that wouldn't be the same case for Mumbai or Bangalore. But 2 CR जितना अमाउंट अगर लगाते हैं, सो व्हाट एसेट पीरियड रियल स्टेट में, जैसे कच्ची ज़मीन हो गई, रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, और कौन से एरिया में वुड यू सी एज द आइडियल इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट? सी इसमें 3-4 चीज़ें आपने मिक्स करी है। एक तो आपने क्लासिफिकेशन डाला है कि अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो सी एग्रीकल्चर लैंड ली जा सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। देन इन दैट ऑल्सो रेसिडेंशियल में देयर आर प्लॉट्स, देयर आर विलास, देयर आर फ्लैट्स। In commercial, if you go, then there are industries, there are warehouses, there are showrooms, then offices. So इन सब के अंदर भी अलग अलग पैरामीटर्स है, परसेंटेज है ग्रोथ के। देन सेकेंड थिंग कम्स द जोग्राफी। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि इंदौर को ही देखें हम, सो इन इंदौर इफ यू टॉक अबाउट जोग्राफी, देर आर 4 to 5 बिग पॉकेट्स वेयर द टोटल इंदौर इज डिवाइडेड इनटू, वन इज कॉरिडोर एंड उज्जैन रोड, second is bypass, third one is Khandwa Road and all, fourth one comes to the other part where it goes towards Mahu or it goes towards Dhar, and then the center of Indore. So in this then we have to see that हम इन्वेस्टमेंट कहाँ लेकर आ रहे हैं। आज से आप थोड़े टाइम पहले देखेंगे तो बाईपास पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए थे। बाईपास के इन्वेस्टमेंट्स फिर थोड़ा डल हुए, लेकिन उसके बाद से जब से वहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज में लोग रहना चालू हुए, तो देन उसके प्राइसेस चेंज हुए। इसी तरह से कुछ समय पहले हमारा कॉरिडोर लॉन्च हुआ था। एट दैट टाइम 500-600 रुपीज़ का प्राइस था। आई नाउ इट इज़ एट 4,000 टू 5,000-6,000। व्हाई? बिकॉज़ नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ डेवलप्ड। टीसीएस, इन्फोसिस आर ऑलरेडी देयर, एंड एयरपोर्ट के लिए लोग अब मेजरली इस रोड को यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद मेट्रो आ चुका है। सो नाउ द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट एरिया, नाउ दे वांट टू हैव देयर हाउसेज आल्सो देयर। सो द फ्यूचर इज़ नाउ कमिंग। सो अब वो जो लोग वहाँ पर अभी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते थे, वो लोग अब अगर उसमें मल्टीज़ में भी आएँगे, तो अब काफ़ी सारे कमर्शियल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लोग वहाँ रहेंगे। तो देन दैट बिकम्स अ पार्ट, गुड इन्वेस्टमेंट। थिर्डली इफ यू टॉक अबाउट उज्जैन रोड, सो अभी उसका 6 लेन ऑलरेडी वर्क चालू हो गया है। राइट। बिकॉज़ अवर सीएम इज़ फ्रॉम उज्जैन, ही हैज़ लॉट ऑफ विज़न टुवर्ड्स इंदौर एंड उज्जैन कॉम्बिनेशन। वो चाहते हैं कि मेट्रो भी आए। देन आने वाले समय में उज्जैन में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो 2 साल के बाद होने ही वाला है, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो मार्केट भी बहुत अच्छा है। अब इसमें जो डिफरेंस है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, कि यू हैव टू सी द डिमांड एंड सप्लाई। उज्जैन रोड पे मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले कुछ 6 से 8 महीने में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं कि थोड़ा-सा वहाँ पर प्राइस बढ़ता है, लेकिन अवेलेबिलिटी भी आ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो उसके कारण से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एग्ज़िट उस रेट में नहीं मिल पाता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो देन एज़ अ इन्वेस्टर यू ऑलवेज़ हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द डिमांड, व्हाट इज़ द सप्लाई, एंड उस हिसाब से क्या अच्छा होगा। सो दीज़ आर द पॉकेट्स इन व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, एंड इनमें से फिर क्या अच्छी डील हमें पर्सनली मिल सकती है, वो हम एज़ अ कंसल्टेंट उस पे वर्क करते हैं, एंड देन वी सजेस्ट टू अवर इन्वेस्टर्स दैट this is the right geography in which this is a right kind of project where we expect that you will be getting timely deliveries, as well as they are also giving a flexible model for your investments, and the name and the brand of the builder is good. We are fully assured that he would be delivering the product in time,
एंड दैट दीज आर ऑल बेसिक पैरामीटर्स जिससे मिलके वो प्रोडक्ट जो है उस वैल्यू पे पहुंचता है जहाँ से हम उसको फिर वापस एग्जिट कराते आई सी, दैट्स वेरी इन डेप्थ। आई थिंक आपने पूरा मेजर जो एस्पेक्ट्स मेरे दिमाग में मैं चाह रहा था, यू सॉर्ट ऑफ ओपन दैट अप। बट आई वुड अगेन लाइक टू गो बिट मोर स्पेसिफिक, क्योंकि for just from my personal angle, I see you as a senior authority, so it will be nice for me to know your opinion इस पे। मानिए कि 2 करोड़ रुपए ही अगर अपन को लगाने हो प्रिसाइसली, and not to diversify, just to put it in one place or one sort of unit, what would be your favorite one? जैसे रेसिडेंशियल में अगर आप लगाए, रेसिडेंशियल के मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं। आज जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है, आई पर्सनली थिंक कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एक टाइम बाद डिटोरिएट होने लगती है क्योंकि फैमिलीज़ रहती है। कंपेयर्ड टू कमर्शियल्स थोड़ी और मेंटेन्ड होती है। बट अगेन दैट्स ओपिनियन बेस्ड थिंग, क्योंकि रेसिडेंशियल में भी प्री लॉन्च में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। कच्ची ज़मीन तो सब जानते ही है कि कैसे बेनिफिट्स होते हैं उसमें। एंड देन वी हैव आईटी सेक्टर इन कमर्शियल, एक थोड़ा-सा सेगमेंट अलग जाते हुए। So what would be your sort of main preferred as well as the area, if I may ask? सी मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि मेरे पास अगर 2 करोड़ है और मान लीजिए कि मुझे कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं चाहिए, मेरा और कोई विजन नहीं है रेंटल इनकम का या और इस तरह की कोई भी चीज़ कि मुझे कोई लोन नहीं लेना है, देन माय श्योर शॉट बेट विल बी ऑन अ रेसिडेंशियल प्लॉट। सो दैट प्लॉट आई वुड बी गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू, and I would also like to go to invest with a brand which tell me a installment based plan, क्योंकि मैं उसमें अर्ली लेवल पे एंट्री लूँ और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब तक का जो मुझे मेरा धीरे धीरे उसको पेमेंट देना है वो भी फुलफिल हो और फिर उसके बाद में वो प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से डेवलप हो जाए, तब मैं उसको एग्जिट करूँ। ये मेरा प्राइम फैक्टर रहेगा। नाउ वाई नॉट कमर्शियल? क्योंकि कमर्शियल प्लॉट्स थोड़े से बड़े साइज़ पे होते हैं और वो इस तरह की टाउनशिप नहीं होती है कमर्शियल्स की। अदरवाइज़ कमर्शियल प्लॉट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट माय बेट वुड बी डेफिनिटली ऑन प्लॉट इन कंपैरिजन टू फ्लैट्स और शोरूम्स और ज़मीन का ऑफिसेज़। टुकड़ा हमेशा यस, just always, yes. Okay, very nice. And I remember upon the payment plan we were talking about. When we were coming, we were just on the way. आपने रेमंड्स की बात की थी कि रेमंड्स एक पेमेंट प्लान देके they give a very nice appraisal. If you don't mind, how does that exactly work उसमें? सी थोड़ा-सा टेक्निकली हमको फिर जाना पड़ता है उसके अंदर। पहला तो पार्ट ये हो जाता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो जैसा आपने बोला कि कहाँ करना है बताइए, तो मैंने आपको प्लॉट सजेस्ट किया। बट हमने ये भी बात करी कि साथ में वो प्लॉट हम किससे ले रहे हैं, उस प्लॉट का जो ब्रांड है वो कैसा है और उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फाइनल जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई रहती। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार जो बिल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी स्कीम्स देते हैं। अब उन्हीं स्कीम्स में से एक स्कीम है जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने रेवंस के साथ की थी। दे वेयर आइंग टुवर्ड्स अ वेरी लार्ज स्केल ऑफ सेल्स विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो उन लोगों ने क्या किया कि उनका एक थाने में प्रोजेक्ट है जिसका कि नाम इन्विक्टस है, उसमें बाहर बहुत अच्छे कमर्शियल्स है। So they told that they would be giving a investment payment plan of 10:90. Now what that means is कि आपको आज की तारीख में 10% पेमेंट देना है टोटल इन्वेस्टमेंट का, एंड उसके 2 से 3 साल के बीच में जब वो पोजीशन के लायक प्रॉपर्टी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, उस टाइम आपको बैलेंस 90% देना है। वाओ! ओके। अब आप सोचिए कि मैंने अभी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, और मैं उसके ऊपर अगर मिनिमम भी अगर 8% टू 9% आई रखता हूँ हुँ, डेवलपमेंट की एप्रिसिएशन की पर ईयर। पर एनम ओके, क्वाइट बेसिक। ठीक है। सो अगर मुझे 10% का मान लीजिए इंक्रीमेंट आता है, तो 1 करोड़ रुपए पे मुझे 10 लाख रुपए मिले। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यही 1 करोड़ रुपए पे मुझे बिल्डर पेमेंट प्लान देता है 10:90 का, तो मुझे सिर्फ़ 10 लाख रुपए देना होते हैं 1 करोड़ की जगह पे। तो अब वो अगर एप्रिसिएशन मेरा 10 लाख रुपए ना भी आता है और अगर वो मुझे 5 लाख रुपए भी आता है, तो वो 10 लाख रुपए पे आया है मुझे। सो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़
and I am even getting a 5% return per annum, but that would be on my 1 करोड़ रुपए किटी, जो मेरा 1 करोड़ रुपए की यूनिट है। पैसे तो मैंने 10 लाख ही दिए, 3 साल के बाद 90 लाख देना है, पर 3 साल के बाद उसका एप्रिसिएशन फिर 10-10-10-30% हो जाएगा। पर आज मेरा मेरा पेमेंट जो मेरी जेब से लगा है, वो तो मेरा 10 लाख लगा। सो 10 लाख पे 5 लाख कमाया तो मेरा 50% का रिटर्न हो गया। अंकल, सो ये जो 90% है, सॉरी टू इंटरप्ट, जी। ये 90% आप पोज़ेशन पे दे रहे हैं या उसके बाद भी स्ट्रेच हो जाता है? नहीं, जब भी पोज़ीशन का कॉल आएगा, प्रेशर आता है तब? हाँ, तभी देना है, लेकिन उसमें कुछ उनकी कंडीशंस भी होती हैं। लाइक कि हम बे पोज़ीशन के पहले जैसे मुझे लगा कि 5% से मुझे 5 लाख मिल गए तो मैं 10 लाख देके 5 लाख वापस दे दूँ, ऐसा नहीं है। आई हैव टू वेट टिल 3 इयर्स, आई हैव टू पे द फुल अमाउंट, आई हैव टू गेट द रजिस्ट्री डन इनिशियली ओनली व्हेन आई पे दिस 10% पेमेंट, and after that also the growth is very healthy. When you will talk in papers, you will see that that is an exponential growth if the builder gives that kind of payment condition. But then builder के पास इतनी liquidity होनी चाहिए, and he should have that kind of confidence in the product that वो इतना appreciate होगा। तो उस टाइप के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट हम लोगों की, आप लोगों की ये ड्यूटी है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहें। कहीं पर ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है, कहीं पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है, कहीं पे फाइनेंशियल जो प्रपोजिशन है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज़ 3 कॉम्बिनेशंस, देन वी हैव टू टेल अवर इन्वेस्टर दैट दिस इज़ द राइट प्लेस। एंड ऑलवेज़ जब भी मैं अपने इन्वेस्टर को कुछ भी सजेस्ट करता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि मैं पर्सनली उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहा हूँ। सो वी डू ऑल काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल, टेक्निकल एज़ वेल एज़ लीगल, एंड देन ओनली वी सजेस्ट। क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वो बोलते हैं क्योंकि आप कराइए इन्वेस्टमेंट और साथ में एग्जिट भी आप ही को कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वो है। सो अगर हम अच्छी हेल्दी एग्जिट कराएंगे तो देन ही वुड अगेन गो विद अस ओनली। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन द पोर्टफोलियो ऑफ आवर इन्वेस्टर्स। I think coming in the market, I think most important is exit. Or what I understand is as a job role of this specific field of a realtor. Yeah. I believe you give the exit, you have the investor for life. मतलब वो आदमी ये समझ जाता है अपने पैसे बना के दिए एंड ही इज विथ यू। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने रेमंड्स का बताया पेमेंट प्लान। आपको लगता है ये इंदौर में भी धीरे धीरे आएगा कुछ डेवलपर्स के साथ? हाँ, मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 1% का प्लान भी बनाया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एनआरसी ग्रुप की, तो एक अपने आप में उन्होंने एक ऐसे टारगेट सेगमेंट को आई किया जहाँ पर उनको लग रहा था कि वो लोग जो लोन नहीं लेना चाहते हैं, परंतु उनके पास एक अच्छी हेल्दी मंथली रिकरिंग इनकम है। करेक्ट। सो उन्होंने ये मॉडल हमारा दुबई में चलता था, उसको पूरा स्टडी किया एंड इंदौर में वो लेके आए। एंड जिस तरह से हमारे जो अच्छे यहाँ पे जॉब वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो एसआईपी करते हैं, तो ये एक प्रकार की एसआईपी है रियल एस्टेट में, जिसमें कि आप 1% पर मंथ दे सकते हैं एंड राउंड द वे आपका एक असेट क्रिएट हो जाता है और पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल है। तो इस टाइप के भी प्रपोजिशंस यहाँ रहते हैं। कई सारे यहाँ पर बिल्डर्स तो पहले एक पेमेंट प्लान लेके आए थे जिसमें कि पोजीशन वाला जो पार्ट है, जो हम 1090 की बात कर रहे हैं, उसमें वो रिवर्स लोन भी लेते थे। यानी कि लोन बैंक से हमें हो जाता था एज़ अ इन्वेस्टर, और उसका पेमेंट मिलता था बिल्डर को, और जो अपने ऊपर इंटरेस्ट आता था बैंक का, वो इंटरेस्ट बिल्डर दे देते थे। ओके। पर देन कल को मान लीजिए कि बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया या वो इंटरेस्ट नहीं भरा, तो उस केस में वो लायबिलिटी हमारे ऊपर आती थी क्योंकि लोन हमारे ऊपर है। ऐसी पर वो जो केस था 10:90 का जो बिल्डर डायरेक्ट दे रहा है, उसमें हमें किसी तरह का लोन नहीं लेना है। सो देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑन अस एज़ सच ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। See, if a builder is substantially good, Yes, so definitely. sorry, you were saying if a builder. No, that's it. It's very nice you said the point, sir, about NRC, because being someone who has worked in that development, Ankesh ji and Hitesh bhai, they did a very nice job in closing the market. क्योंकि मुझे लगता है पेमेंट प्लान जो अपन रेमेंट्स की भी बात की, हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन अ कस्टमर्स हैंड रियली गिव्स दैट पावर, जिसमें बहुत पैसा नहीं लग रहा, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मनी इज टू बी डाइवर्सिफाइड एंड मनी इज पावर व्हेन यू हैव इट, राइट? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए
और आप सिर्फ 20 लाख ही दे रहे हैं, उस पे आप अप्रिसिएशन भी ले रहे हैं और उस पे आप एग्जिट भी ले रहे हैं एक पॉइंट पे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है, यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई इट, हैव मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। इफ़ यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर, देन इसमें कभी-कभी स्टोरी उल्टी भी चली जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ लोग बहुत ओवर स्पेंड कर देते हैं एज़ इन्वेस्टर्स, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। वेयर इन्वेस्टर्स सॉर्ट ऑफ आर ओवर कॉन्फिडेंट, उनके पास उतना पैसा होता नहीं है एंड उससे डेवलपर भी अटक जाता है, इन्वेस्टर भी अटक जाता है। देयर इज़ डिफरेंट साइड्स टू इट, बट आई रियली थिंक कि इंदौर में अगर इस तरह के पेमेंट प्लान्स आएँगे, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स हियर। यू आर राइट। Um, just as a last question, because we are talking deep into payment plans, investors, developments, uh, आप एक ऐसे फिगर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि आप कहीं भी जाते हैं, सो एवरीवन नोज मिस्टर नारंग इज समवन who's always there, whose name goes around in the industry, which is very trusted. Lot of big developers, big investors have already worked with you, are still working with you. um, of course your reputation speaks for itself. um, इसमें जो ओल्ड इन्वेस्टर्स थे सर, जैसे उस समय में पुराने इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी होती है कि कुछ लोग फंसी हुई ज़मीन ही खरीदते हैं क्योंकि उसके भाव कम होते हैं, कुछ लोग कच्ची ज़मीन ही खरीदते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी मार्केट में ही डालते हैं। और अब जो नया रियल एस्टेट का एरा आ गया है, जो मुझे फ़ील होता है इन माय पर्सनल ओपिनियन कि अब जैसे हितेश भैया, अंकित जी की अपन ने बात की क्लोज्ड मार्केट प्रोफेशनलिज्म, there's many other developers in Indore who are doing quite nice work in closed market. Uh, so what is your feel on that कि अभी जो ओल्ड स्कूल इन्वेस्टर मैं उनको बुलाना चाहूँगा, आर दे कंफर्टेबल विद द न्यू एज इन्वेस्टमेंट जो अभी हो रहा है, और या वो स्टिल पुराना ही इन्वेस्ट करने में ज़्यादा मानते हैं? और आपके हिसाब से जो बेनिफिट्स आते हैं इन्वेस्टर्स को, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अभी भी काम करती है, या जो नए डेवलपर्स के टैक्टिक्स आ रहे हैं, जैसे अभी अपन एक फाइनेंशियल प्लान की बात कर रहे थे, ये ज़्यादा इन वर्क होता है? देखिए, इसको मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए किसी को एक 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे अपना खुद का घर बनाना है और वो चाहता है कि बहुत ही लग्ज़रियस विला बने, फुल्ली फर्निश्ड बने और वो ये नहीं चाहता है कि कोई और बनाए। और जो ओल्ड फैशन स्टाइल होती थी, जिसके अंदर कि ठेकेदार को लिया जाता था। कई बार हम देखते थे कि वो जो प्लॉट ओनर हैं, वो खुद पानी की तरी भी करते थे। लगभग साल से 1.5 साल उनका उस पे इन्वेस्ट होता था और वो फिर पूरा जो उसका बनाने का जो सिस्टम होता है, उसकी हर पार्ट में माइक्रो लेवल पे जाके और इन्वॉल्व होके और फिर उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करते थे। सो उस पैटर्न पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो बचा लेते हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक्स्ट्रा उनकी टेस्ट की चीज़ें मिल जाती हो। पर कहीं न कहीं वो जो 1 से 1.5 साल का समय उनका भी जाता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उनकी पर्सनल, वो हैम्पर होती है। इस बात को हमारे नए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं, जिनके डिसीज़न बहुत फ़ास्ट हैं, जिनके पास मल्टीपल काम हैं, दूसरे प्रायोरिटी में, उन लोगों ने समझी और उन लोगों ने फिर ये कल्चर अपनाया कि हम अगर किसी भी तरह का कोई बाइंग है, तो वो ज़्यादातर रेडी फॉर्मेट पे करें या हम ओवर द पीरियड ये भी देखें कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क, जो बिल्डर्स का जो लेवल है, जो बड़े ब्रांड्स आजकल इसके अंदर आ गए हैं, तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ तो रेडी मिल जाती हैं और कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कि यूथ को ट्रस्ट है कि नहीं यहाँ पर गलत नहीं होगा और अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो वो जो इन्वेस्टर है आज का, जो चाहता है कि वो अपना प्रोडक्टिव टाइम अपने पर्सनल जो काम कर रहा है, जो जॉब है, उस पे पूरा फ़ोकस करे और इसको जितना ही समय दे, जितना कि एक इन्वेस्टर को देना है। अगर उसकी ये चॉइस है, तो फिर उसको इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आना चाहिए, जहाँ पर कि ऑलरेडी बिल्डर एक बहुत अच्छा प्रोपोज़िशन दे रहा है और सब कर रहा है। और मान लीजिए कि कोई ऐसे हमारे इन्वेस्टर साथी हैं जिनके पास काफ़ी समय है और वे खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व होके कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। तो वो जो आपने बोला कि ओपन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वहाँ पर जाना है या उनकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई इफ़ बटे तो उनको क्लियर करना है और फिर उसके हिसाब से अगर उन्हें ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, तो उतना उनका समय भी इन्वेस्ट होता है। ले दे के मुझे लगता है दोनों एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे है, डिपेंड कि आपका पर्सनल उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है। आई थिंक यू आर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट जो आपने बोला। दिस इज समथिंग आई एक्सप्लेन टू माई क्लाइंट्स
अलॉट। एक ऐसी डेवलपमेंट है जैसे कि मैंने अभी अपन एनआरसी की बात कर रहे थे, तो इनका एक प्रोजेक्ट है आईटी पार्क। ओके, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। अब आईटी पार्क में सर ऐसा है कि 6,500 से द रेट वो स्टार्टेड फॉर व्हीकल पार्क। अब 1% पेमेंट प्लान है, 20% आप बुकिंग दे देते हैं, 1% पर मंथ चलते रहता है। 6,500 का 8.5 हो गया, 9.5 हो गया, जब भी भाव उसका इंक्रीज होता है। सो इन द क्लोज्ड मार्केट डेवलपमेंट क्लोज टेबल पे उसी भाव से कस्टमर को दे रहा है। तो जो इन्वेस्टर है जब वो रीसेल करने जाता है, तो उसको 10 लोगों से बात नहीं करनी कि यार आप कितना रेट करेंगे। ही इज़ क्वाइट श्योर कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी नंबर के आसपास मेरा मेरा रिटर्न आ जाएगा। ₹2,000 पर स्क्वायर फीट भी अपन देखते हैं 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिस पे, तो मोटा-मोटा 20 लाख he can take out of that investment on a very small amount, like we were talking about Raymonds. But then again, वो बात आ जाती है जो अपन आपने अभी बताया कि जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है, जो कच्ची ज़मीन इस इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, बिकॉज़ इन माय पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल फील, उधर भी बड़ा अच्छा अप्रेज़ल है, बड़ा अच्छा पैसा है। बट ये है कि आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए, समय होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप जाके चेक कर रहे हो। क्योंकि जहाँ-जहाँ भी मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर कच्ची ज़मीन में, तो मुझे तो हर संडे जाना पड़ता है वहाँ पे जस्ट टू चेक कि इट्स क्वाइट सेफ। और दूसरा सेफ्टी के अलावा एक और पॉइंट है कि क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है वहाँ पे। तो आप अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स का आप टोटल देखोगे ना, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, बट उसके पास उतनी बड़ी टिकट साइज़ नहीं होती है कि वो बाहर ही जाए और एग्रीकल्चर लैंड ही ले या बड़ा वेयरहाउस ले ले हाँ, वो या कोई बड़ी कमर्शियल खुद से ले ले। तो वो जो इन्वेस्टर है, आजकल वन स्टेप फॉरवर्ड जाके आपने सुना होगा फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो तो इस कदर हो गया है कि सिर्फ़ ना कि एक बिल्डिंग में एक ऑफ़िस खरीदें, बल्कि एक ऑफ़िस के भी 5 पार्ट हो जाते हैं और उसकी फ्रैक्शनल सेल्स हो जाती है। तो वो वाला पार्ट भी ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज़ कर रही हैं। सो जस्ट बिकॉज़ कि उनको ये फ़ील आया कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो जो किटी है उनकी अलग-अलग, उसमें सारा ही पेमेंट किसी एक पार्ट में ना रखते हुए रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रहता है और एक हेल्दी रिटर्न उनको समय से मिल रहा है और हमारा जो नया इन्वेस्टर है उसको एग्ज़िट की बहुत चिंता है। तो वो ये ज़रूर चाहते हैं कि जब भी जहाँ भी वो इन्वेस्ट करें, उनको डिसीज़न लेना है अगर एग्ज़िट का, तो ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6 महीने तक उनको वेट करना पड़े। दे नीड वेरी फास्ट एग्ज़िट एंड वेयर द पीपल ऑफ फ्रॉम द बिल्डर साइड और द पीपल लाइक कंसल्टेंट्स हू हैव गॉट देम इन्वेस्टेड, वो अगर उनको एग्ज़िट कराते हैं तो दे आर मच मोर हैप्पी टू टेक अ स्मॉल अमाउंट लेस, बट दे वांट द थिंग्स टू बी गोइंग वेरी स्मूथली। सर अपन बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि मैं सेक्शंस में आगे जाना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि अगेन आई वुड लाइक टू डिग अ बिट डीप इनटू फ्रैक्शनल। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। व्हाट आई फील इज़ फ्रैक्शनल इज़ द फ्यूचर, एग्ज़ैक्टली एज़ यू सेड। क्योंकि मेरा मार्केट में फील ऐसा है, इन्वेस्टर्स है रियल एस्टेट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मिनिमम एंट्री के लिए आपको 8 से 10 लाख तो लगता है। 8 से 10 लाख आपके पास है तो आप एक छोटा-सा कुछ खरीद के उसमें एंटर कर सकते हैं। व्हिच आई पर्सनली थिंक एवरीवन शुड, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। अ, अगर आपने मतलब थोड़ी-सी भी सेंसिबिलिटी के साथ इन्वेस्ट किया है तो। नाउ फ्रैक्शनल सर आई थिंक इज़ सो स्मार्ट बिकॉज़ आज इंदौर में 8 लाख 10 लाख बहुत कम लोगों के पास आई स्टिल फील एज़ अ इन्वेस्टमेंट रखे। बट बहुत सारे लोगों के पास ₹20,000, 25 50,000, 1 लाख, ऐसा सबके पास, स्टूडेंट्स के पास भी रखा रहता है। सो फॉर मी आई फील अगर कोई इसको एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज़ करे इंडिया में, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, बट आई थिंक दिस वुड बी द नेक्स्ट बिग बूम ऑफ इंडिया। Definitely, Siddhant, this field of fractional investment is coming very nicely in India. Currently, few industries in companies are there, but right now, what is happening that there are many companies who are doing fractional investments without going into REIT. सो क्या होता है कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वो आइदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है और अदरवाइज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेबी। नाउ दिस फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली वाज नॉट कमिंग अंडर बोथ द थिंग्स, सो देयर वाज अ थिंग व्हिच वाज सीन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन दे इंस्ट्रक्टेड दैट नाउ whosoever wants to go into fractional investment, he has to go through real estate investment trust. So that REIT is a basis in जिसका लाइसेंस कंपनी को लेना होगा एंड देयर आर सम कंपनीज लाइक ब्रिगेड एंड ऑल हु आर ऑलरेडी इनटू REIT
एंड दे आर डूइंग इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में बहुत सारी कंपनी ऐसी आएंगी, क्योंकि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट उन हर व्यक्ति को रियल एस्टेट से जोड़ेगा जिसको एक प्रॉपर्टी लेने का सपना है। और साथ में एक जब उसको गारंटीड रिटर्न मिलता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मेरे पास में 15 लाख रुपीज़ है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे प्लॉट पे जाकर जहाँ कर मैं खुद, अगर मान लीजिए कि मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दी है इंदौर में इन्वेस्ट करने की, और मैं इस समय अगर बेंगलोर में हूँ या मैं मुंबई में हूँ, और मुझे कोई बोले कि आप कॉरिडोर पे एक प्लॉट है 600 स्क्वायर फीट का, आपके बजट में आ रहा है, आप ले लीजिए। तो मुझे आप बताइए कि मैं कितनी बार इंदौर आके अपने प्लॉट की सर्च करूँगा, ध्यान रखूँगा। और बाय द वे, अड़ोसी-पड़ोसी ने उसको एन्क्रोचमेंट कर लिया या कुछ उसकी सेफ्टी का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। उस सेफ्टी के कारण कई सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए फ्लैट्स में जाते हैं कि रिटर्न कम आएगा, पर एटलीस्ट हमारा फ्लैट जो है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। पर फिर भी इच्छा होती है कि अरे, मान लीजिए 50,000 स्क्वायर फीट का कोई एक बहुत बड़ा ऑफ़िस है आईबीएम का, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, और मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, और मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी इस तरह की किसी ऑफ़िस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता, जो कि सेफ़ होता, जहाँ की मान लीजिए कि 15 टू 20 इयर्स की लॉन्ग टर्म लीज़ करी हुई है, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि इसमें 7 टू 8% का तो मिनिमम रेंट आ रहा है, एंड 8 टू 10% की ग्रोथ है। तो 16-17% अगर इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर कुछ खर्चा भी आ जाता है, तो मुझे दिख रहा है कि 14-15% का श्योर शॉट रिटर्न है। तो मैं पर्सनली इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में 12-15 लाख रुपए लेके तो कुछ नहीं कर सकता। बट बिकॉज़ ऑफ दिस फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, वो जो कंपनीज़ होती हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हैं, रीट के अंदर करती हैं, वो ऑफ़र देती हैं आपको कि आप अपना 15 लाख रुपए उस बड़ी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। और आपको फिर वो जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो उनको रिटर्न आ रहा है, उसके ही परसेंटेज से आपके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट पे पेमेंट मिल जाता है। करेक्ट। सो इन दैट वे थिंग्स आर मूविंग स्लोली, बट आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसको कि हमारे इंदौर के बिल्डर्स को भी आई करना चाहिए। और इस तरह के आईटी पार्क जो अब फ्यूचर में यहाँ इंदौर में आने वाले हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मेट शायद बहुत सक्सेसफुल रहेगा। करेक्ट सर। आई मीन दिस इज़ यू हैव लेड इट आउट क्वाइट नाइसली एंड ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर्सनली मैं खुद तो बड़ा इन्वॉल्व होना चाहूँगा, क्योंकि REITs is very interesting in, as we already spoke, कि India is a market for this system. Just going forward now, this is our sort of next section where we go a bit still onto the investor talk, but a little bit different from what we were speaking about. Uh, this is where मैं थोड़ा सा आपका जो experience है as a seasoned realtor, someone who's been in the market since so long, we'll dig into that. Uh, जो भी रिलेशनशिप्स सेकेंडरी मार्केट डील्स इन्वेस्टर नेटवर्क्स के थ्रू आपकी बनी है अ, या बनाई जाती है फॉर अ रियल्टर, कैन यू डिफाइन दैट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग, प्राइसिंग, एडवांटेज एंड डील स्पीड की इस चीज में? Siddhant, again, it is a multiplayer question. We will divide it into relationship with the builder, relationship with the investor. You also talked about primary and secondary market. तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पर कि हम कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली बिल्डर से लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी हो, बट वी टेक इट फ्रॉम द बिल्डर। सेकेंडरी मार्केट मीन्स कि किसी एक व्यक्ति का कोई घर है या कोई एक शोरूम है, और हमारे इन्वेस्टर को हम उसको दिलवाते हैं, तो वो एक जो बाइंग होती है वो किसी एक दूसरे व्यक्ति से जिसने वो प्रॉपर्टी ली हुई है उससे होती है, तो इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। एंड देन यू टॉक्ड अबाउट कि उसमें हमको हम्म। हमारे रियल्टर होने पर इन्वेस्टर को किस तरह से हम फ़ायदा दिलवा पाते हैं हमारे वहाँ पे प्रेजेंस होने से। तो 3-4 तरह की चीज़ें इसमें होती है। सबसे पहली तो ये होती है रेट्स में बार्गेन। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि कंसल्टेंट्स के थ्रू जाने से, रियल्टर्स के थ्रू जाने से, ब्रोकर्स के थ्रू जाने से उनको ब्रोकरेज लग जाएगी, उनको पैसे ज़्यादा लग जाएँगे, तो उनका जो कॉस्ट है जिस पे कि वो बिल्डर से प्रॉपर्टी लेंगे, उसकी जगह उनको महँगा पड़ेगा। सबसे ऐसे वेरी रॉन्ग थॉट। ऐसी थॉट हमारे कई सारे साथियों की होती है। पर अगर आपके कंसल्टेंट अच्छे हैं और उनके रिलेशनशिप बिल्डर के साथ बहुत अच्छे हैं, तो बिल्डर आपके कस्टमर को सबसे पहले बहुत अच्छे रेट्स देता है। सेकेंडली,
वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो बताते हैं उनको, जो कि अमूमन शायद पूरी तरह से मार्केट में नहीं होती। परंतु क्योंकि आपके अगर बायर की कोई पर्टिकुलर चॉइस है, ही नीड सम गार्डन फेसिंग प्लॉट और अ कॉर्नर प्लॉट और सम नॉर्थ ईस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो चीज़ें उन लोगों के पास रहती तो हैं, पर अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, क्योंकि वो चाहते हैं पहले दूसरे प्रोडक्ट्स बिकें। So second thing is that the priority of the product allocation of the product, and third thing is that when we do a commitment to the builder, that we feel that in your particular project we would be getting X amount of turnover, or you can say sales. Then he again gave us a priority in the sales and also in some pre-launches we are called before, and then our investors can see the product in the first phase, and then they can take the decision, they can invest, and then it opens to the market. तो ये सब चीज़ें वहीं हो पाती है जहाँ पर कि आपके बिल्डर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हो, जहाँ पर कि बिल्डर ने आपका कंसिस्टेंट बिजनेस देखा हो, और जहाँ बिल्डर को ट्रस्ट हो कि आपके जुड़ने से उनको अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे। ये बात हो गई हमारी बिल्डर के साइड की। सेकंड साइड की, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा? तो ये जितनी भी बातें हैं ये रेप्लिकेट हो जाती है कि उन्हें बेटर रेट्स मिलेंगे, उनको टाइमली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में वो मिलेगी, बेटर एलोकेशन मिलेगा जैसा आपने बोला, और उसके बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी सेल्स में, मतलब परचेज़ के टाइम पे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि हमेशा हमें कंसल्टेंट को साथ में रखना चाहिए कि रियल एस्टेट अगर आप सीधा जाके परचेज़ कर रहे हैं तो इट इज़ मे बी 1 मंथ और 2 मंथ वर्क। बट अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोडक्ट पे कर रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो 2 साल से 3 साल भी लगता है, और उसके अंदर में बहुत सारा होमवर्क होता है, जो कंसल्टेंट की टीम करती है, और उसको उनके द्वारा कर लेने से वो जो भी चार्जेस उनके खुद के होते हैं वो तो निकाल ही लेते हैं वो लोग, जिसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर पर नहीं आता है, परंतु बहुत सारा वर्क जो है वो इन्वेस्टर को हल्का करके देता है। सो इस तरह से आपका जो मॉडल है एज अ कंसल्टेंट, वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्डर को भी आपके होने से बहुत सारी हेल्प मिले, इन्वेस्टर को बहुत सारी हेल्प मिले, और सभी के लिए वो विन विन का एक मॉडल बन जाए। Okay, I see. Just following up with exactly because this really breaks down कि ब्रोकर और रियल्टर एग्जैक्टली क्या काम होता है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेआउट की जो इन्वेस्टर्स के माइंड में गलत मतलब एक मेच्योर आउटलुक है, एक सिंपल थॉट नहीं होता। मैं गलत तो नहीं बोलूँगा इसको, इट्स जस्ट जिन्होंने मार्केट में डील नहीं किया है वो जानते नहीं है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गो टू अ कंसल्टेंट एंड हाउ मच ही कैन एक्चुअली हेल्प, राइट? सो इट्स क्वाइट नाइस। जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, इंदौर का मार्केट एक सीज़न्ड सेकेंडरी मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे मैंडेट बेस, प्रोफ़ेशनल वर्किंग, प्रोफ़ेशनल टीम्स ये सारी नहीं हुआ करती थी। आज के समय में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंडेट्स आ गए। आई एम श्योर आप एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस आपके भी कई मैंडेट्स हैं इंदौर में, इंदौर के बाहर। माय कंपनी हैज़ फ्यू मैंडेट्स एज़ वेल, उसमें जो हम लोग क्लोज़ मार्केट में काम करते हैं। दैट सिस्टम विद अ मैंडेट जो डेवलपर्स के साथ होता है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान आपको लगता है? अ, दोनों में मैं थोड़ा-सा डीप जंप करना चाहूँगी। उस आई थिंक उससे फ़ायदे तो बहुत सारे आए, बट कहीं न कहीं अगर आपके थॉट प्रोसेस में उसके कुछ नुकसान भी है, सो लेट्स अनकवर दैट। व्हाट डू यू फील रिगार्डिंग दिस सिस्टम स्पेसिफिकली? देखिए, मैंडेट का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट बिल्डर प्लान कर रहा है लेके आने का, और उसकी जो पूरी की पूरी सेल्स है, वो पूरी की पूरी सेल्स किसी एक मार्केटिंग कंपनी को दे दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल भोपाल में एक प्रोजेक्ट है हर्षिता स्मार्ट सिटी के नाम से, 25 एकड़ का 25 एकर्स का प्रोजेक्ट है, और उसकी पूरी न सिर्फ मैंडेट पे हम सेल्स का काम कर रहे हैं, परंतु हम उसमें पीएमसी वर्क भी कर रहे हैं, जिसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बोला जाता है। तो हम काफ़ी सारी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ फार एज़ आर्किटेक्ट्स आर कंसर्न, एमईपी कंसल्टेंट्स आर कंसर्न, जो उनको नंबर्स वगैरह लेने थे, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, और बेसिक जो काम होता है वो सेल्स से मार्केटिंग का तो होता ही है। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दिस? इफ वी टॉक इन द माइंड ऑफ बिल्डर, तो बिल्डर को जब अपनी एक टीम बनानी होती है, तो उसकी रिकरिंग कॉस्ट जो है पर मंथ सैलरी की, वो सारी चालू हो जाती हैं। और आजकल जो जिस तरह का डिजिटल युग आ गया है, जिसमें कि जिस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह सब चाहिए, वो
एक पर्टिकुलर बिल्डर जो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और उसके अलावा उसका मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट में जा रहा है, वो इतना उस पे फोकस नहीं कर पाते जितना कि एक सीजन्ड मैंडेट कंपनी करती है, क्योंकि उनके पास में वो सारे वेंडर्स, वो सारा सिस्टम, वो सारी टीम, वो टेलीकॉलर्स वगैरह सब रेडी रहते हैं। सो इमीडिएट लेवल पे बिजनेस स्टार्ट होता है, एक फ्लो के साथ में वो आगे बढ़ता है, उसकी एक एसओपी डिसाइडेड रहती है, तो काम बहुत फास्ट हो जाता है बिल्डर के लिए। एंड सेकेंडली, ही डजंट हैज टू इन्वेस्ट एनीथिंग ऑन समथिंग विच इज़ नोन एज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मैंडेट में आपकी सेल होने के बाद आपके साथ जो परसेंटेज तय हुआ है बिल्डर का, आपको उतना पेमेंट ही मिलता है। परंतु अगर आपने सेल्स नहीं करी या उतना टर्नओवर नहीं हुआ, बिल्डर को कोई लॉस नहीं है। सो इन दैट वे द बिल्डर इज इन प्रॉफिट। नाउ यू टॉक्ड अबाउट कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो कई बार जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं 2 साल 3 साल वाले, तो बिल्डर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम जब सेल कर रहे हैं तो साथ में उसका कैश फ्लो भी मैनेज करें। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट में चूँकि बिल्डर के उसमें मान लीजिए कि अगर हम एक अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो स्लैब वाइज़ पेमेंट है, देन ब्रिक वर्क पे पेमेंट है, देन फाइनल पे पेमेंट है। तो इस तरह का जो पेमेंट प्लान होता है उसमें काफ़ी बार हमको फाइनेंशियल पेमेंट्स वगैरह और इनके लिए कॉल करना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर को या बायर को, और फिर उससे वो पेमेंट भी लेने की जवाबदारी हम लोगों की हो जाती है। और उसमें कई बार पेमेंट डिलेज़ होते हैं, कई बार कोई डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, कई बार कैंसलेशंस भी होते हैं। तो हम हमेशा बिल्डर को बोलते हैं कि हमारा पार्ट जो है वो सिर्फ़ सेल्स का रखा जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पे फ़ोकस करें। पर कई बार बिल्डर चाहते हैं कि नहीं, आपके कनेक्ट्स जो हैं क्योंकि बायर आप लेके आए हैं तो आपके साथ में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो आप ये काम करिए। तो ये एक ज़रूर एक पॉइंट है, कलेक्शन जहाँ पर कई बार लगता है कि कलेक्शन एक स्ट्रेस के रूप में कई बार आता है, जब हम मैंडेट की बात करते हैं। मैंडेट में करेक्ट। आई थिंक सर मेरा इसमें ओपिनियन रहेगा कि इन्वेस्टर वाइज पर्सनली स्पीकिंग मैंडेट इज क्वाइट अ नाइस सिस्टम, क्योंकि मुझे कुछ जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज़ें लगती है, डेवलपर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है वो। जैसे कई बार क्या होता है, अब ब्रोकर्स भी हर प्रकार के होते हैं, रियल्टर्स भी हर प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं, कुछ बस डील क्लोज करना चाहते हैं कि कुछ भी बोल के कैसे भी बोल के बंद कर दें। उसमें इंप्रेशन एंड ऑफ डे आई थिंक डेवलपर की खराब होती है, राइट? कि आपने कुछ भी बोल के डील क्लोज कर दी, बट वो एक्चुअली है नहीं वैसा प्रोडक्ट। एक वो हो गया, एंड दूसरा, जैसे अपन क्लोज मार्केट में प्राइस इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, आज बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स मैं नोटिस करता हूँ जहाँ ओवर ट्रेडिंग हो जाती है पूरी पूरी लेन्स की, कि सबको भाव तो बढ़ानी है। अब वहाँ पे भाव बढ़ाने के लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, प्रोडक्ट में उतना वैल्यू होना चाहिए, या आसपास डेवलपमेंट, बसावट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी, स्कूल्स, मेडिकल, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। जब वो नहीं होता और वो प्राइस अनअफोर्डेबल रेंज में पहुँच जाते हैं, क्योंकि प्राइस अगर गिरेंगे तो रियल एस्टेट नेगेटिव का है। कोई भी प्लॉट मानिए 2,000 का है, ब्रोकर्स ने आके उसको 4-5 हज़ार का बना दिया। अब 4-5 हज़ार में अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट देखें तो 50 लाख का हो गया। कोई भी एक जॉब करने वाले आदमी के लिए वो ऑलरेडी अफोर्डेबल सेगमेंट के बाहर निकल गया है। उसके ऊपर वो बिल्डअप करेगा, घर बनाएगा एटलीस्ट 30-40 लाख का। सो आई फील इस वे में इट्स वन ऑफ द रियली गुड गिफ्ट्स, जो मार्केट ने शिफ्ट किया है मैंडेट सिस्टम। I completely agree with you. I think going down mandate is very good for everyone in a larger perspective, and just organizes the market. That's what I would feel. इसमें आज का जो सिस्टम है, अगेन गोइंग बैक टू यू बीइंग समवन जिन्होंने इतना इन डेप्थ एक्सपीरियंस लिया है थ्रू दिस होल इंडस्ट्री, आज के सिस्टम में आपके हिसाब से एक रियल्टर, आजकल ब्रोकर वर्ड लोगों को पसंद नहीं आता ज़्यादा, बट आई एम अ ब्रोकर सो आई पर्सनली डोंट फील कि इस वर्ड में कोई भी बुरी चीज़ है। आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद बीइंग कॉल्ड अ ब्रोकर एज़ वेल। बट ये जो सिस्टम चल रहा है, मेरी कंपनी में भी जितने लोग काम कर रहे हैं, दे आर इन अ क्लोज्ड मार्केट नाउ। मेफेयर में जितने लोग हैं वो एक सुपरविजन के अंडर में है। बट आज अगर एक नॉर्मल आदमी अगर शुरू करता है, कोई भी ब्रोकर मार्केट में काम करता है, उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी वजह से क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसको किस तरीके से मार्केट में ग्रो करना चाहिए? एज़ समवन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू, maybe let's call this a special sort of message for brokers. How should someone go about being a broker? सी अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, हम इस तरह से बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज अ कंसल्टेंट, एज अ रियल्टर, एज अ ब्रोकर अपना करियर बनाना है,
तो हाउ ही शुड स्टार्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच ही शुड अंडरस्टैंड। तो इसके जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा फील्ड है और इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कि ये फील्ड जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है, तो उसमें से ये जो मकान है, ये जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की तो डेफ़िनेटली बढ़ रही है, तो इसका मार्केट हमेशा रहेगा। तो देयर विल बी ऑलवेज़ अ नीड फॉर अ मकान और अ रियल एस्टेट प्रोडक्ट। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि हर सिटी में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लीजिए कि आप आज मुंबई में हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, मान लीजिए आप इंदौर में हैं, पर अगर आप रियल एस्टेट सेल्स के एक्सपर्ट हैं, तो आपकी वो एक्सपर्टाइज़ किसी भी सिटी में अप्लाई होती है। ये सेकंड बात हो जाती है एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमको उसके अंदर में क्या एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए। तो आपका जो भी बेसिक ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप उसको पूरा करते हैं और आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आप आएँ, तो आप तभी से थोड़ा-सा अपना इंक्लिनेशन इस पे बढ़ाएँ। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आप कोशिश करें कि कोई बहुत अच्छी जो कंसल्टेंसी कंपनी है, उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंटर्नशिप करें। अगर आपका काम पूरा हो चुका है तो आप जॉब करें। जॉब करने के बाद वहाँ एक्सपीरियंस लें कि क्योंकि जो अभी सिद्धांत आपने बताया कि ट्रेडिशनल वे में जो बिज़नेस होता था रियल एस्टेट का और आज की तारीख में जो बिज़नेस हो रहा है जिसमें कि सारे सोशल मीडिया एक्टिवेशन से लेके हम सीआरएम सिस्टम्स और फ्यूचरिस्टिक फास्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। पहले हो जाता था ऐसा कि किसी कस्टमर को हमने 2 दिन बाद भी फ़ोन लगा लिया, 1 दिन बाद भी लगा लिया, चलता था। आज की कंपटीशन इतनी है कि अगर हम कोई ऑनलाइन लीड जनरेट करते हैं और उसको 1 से 2 घंटे के अंदर अगर हमने सर्विस नहीं दी या इमीडिएट सर्विस नहीं दी, तो शायद जब 2 घंटे के बाद हमारा बंदा फ़ोन लगाता है तब तक तो वो विज़िट कर चुका होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की तारीख में कंपटीशन में हैं और जो व्यक्ति आज ऑनलाइन आपके पास में अटैच हो रहा है, उसको टाइम नहीं है इसीलिए ऑनलाइन आ रहा है वो। So he need very fast service. So you have to understand that what kind of things are required. Secondly, then उसमें अगर आप पर्सनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना होता है एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट कि वो कैसा प्रोजेक्ट है क्या है क्योंकि रेरा आने के बाद से जैसा आपने बोला कि कई बार कुछ ब्रोकर्स ओवर कमिटमेंट कर देते हैं जस्ट इसलिए कि वो डील कैसे भी हो जाए। तो वो सब चीज़ों के ऊपर अब पेनल्टी लगती है, आपका रेरा का लाइसेंस कैंसल हो सकता है। तो आपको उतना ही बोलना है जितना कि बिल्डर कमिट कर रहा है और जितना बिल्डर कमिट कर रहा है वो कोशिश आप करेंगे कि आपके पास में रिटन फॉर्मेट में हो या वो रेरा की साइट पे ऑलरेडी क्योंकि जब रेरा का नंबर मिलता है, तो पूरे प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स वहाँ रहती है। आप उसे पढ़ें, समझें और उतना ही आप कस्टमर को नॉलेज दें और कस्टमर अगर रियल बायर है, तो यकीन मानिए कि वो इससे इम्प्रेस होता है कि आपने उसको सिस्टमैटिक चीज़ें बताई है और वो प्रोजेक्ट एक ना भी ले, दूसरा ले, लेकिन आपसे ज़रूर लेता है। तो ये एक हमारे जो नए साथी हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बेसिक्स पे होमवर्क करना चाहिए। इसके बाद फिर आगे तो फिर वो कंपनी कितनी बड़ी लेके जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो साथ के साथ होती जाती है। दिस इज़ अ गोल्डन इनसाइट। सो मतलब आई वुड आल्सो लाइक टू एग्री, कहीं न कहीं ये मैं आपसे ही सीखते हुए अपनी भी लेन बनाते गया। मैं इसके साथ में एक ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के हिसाब से कुछ रोटरी की 4 हमारे फॉरवर्ड इसके कोट्स हैं, वो बताना चाहूँगा कि आप उसको अगर रियल एस्टेट में भी कोट करते हैं, अपनाते हैं, हमने हमारी पूरी टीम को बोला हुआ है। अगर आप उसको करते हैं तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलती है। जिसे कि इस तरह से बोला जाता है कि फॉरवर्ड इज़ फॉर द थिंग्स वी थिंक, से और डू। तो कोई भी कार्य को कहने, सुनने या परखने के पहले चतुर्विद परीक्षण मंत्र पर परखिए। सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं आप देखिए कि इज़ इट द ट्रुथ? क्या ये सत्य है? दूसरा, इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न? यानी कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट किसी को पिच किया है, तो हम पर्सनली देख लें कि उसमें कोई लीगल इश्यू तो नहीं है, टेक्निकली सही है, बिल्डर अच्छे हैं, तो क्या यह इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न? थर्ड थिंग इज़ दैट हमको हो सकता है कि उसको प्रमोट करने में कुछ अच्छा कमीशन मिल रहा हो, हमारा पेमेंट अच्छा मिल रहा हो, परंतु इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न के बाद आता है विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप्स? यानी कि आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं एज़ अ कंसल्टेंट आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आपने आज तो वो प्रोडक्ट मेरे कहने पे लगा दिया, परंतु क्या इससे आपको आगे
इस तरह का कुछ फ़ायदा हुआ है जिससे कि मेरी और आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी और मेरी गुडविल इसको करते हुए आगे बढ़ेगी। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी को भी सजेस्ट करना है, तो ये ध्यान में रखते हुए सजेस्ट करना है कि कल को मैं आपका फ़ोन उठाऊँ कॉन्फिडेंटली और आप सक्सेसफुल हों, अच्छा आप कमाएँ तो मुझे मिठाई का डब्बा भेजें और हमारा बिज़नेस रिलेशन आगे बढ़े। और चौथी बात ये है कि विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न हमारा थर्ड हुआ एंड विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न फोर्थ हो जाता है। सो ये हो जाता है कि हम ये सब जो कर रहे हैं उसके अंदर में बिल्डर का फ़ायदा हो, हमारे इन्वेस्टर का फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा हो, तो विन-विन की सिचुएशन क्रिएट हो। तो ये जो चारों मंत्र हैं, ये हम हमारी टीम को भी बोलते हैं कि आप इज़ इट द ट्रुथ रहिए, इज़ इट फेयर टू ऑल कंसर्न रहिए, विल इट बी बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप करिए और विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। ये चारों पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में अपना लीजिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ अ गोल्डन रूल। आई थिंक ये आपने मुझे पहले भी बताया है एंड इट्स क्वाइट नाइस कि आपने पॉडकास्ट पे भी एवरीवन गेट्स टू हियर दिस, सो थैंक यू फॉर दिस। सो just going forward with that, sir, आपका I mean, this is a bit of how you got into real estate. I would like to do that as well. Back in the day, जब आपने आप भी I'm sure like us as youth and even before, आज से अगर 5 साल पहले मैं भी देखूँ तो मेरे सामने भी कई सारी फील्ड्स थी। हालांकि रियल एस्टेट में मैं 7 साल से खुद इन्वॉल्व हूँ, बट देयर वाज समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट, सो आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरी कि आपको ऐसा क्या था कि एकदम रियल एस्टेट बिकेम योर फील्ड एंड हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू दिस? सी सिद्धांत, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें ना डेस्टिनी कंट्रोल्ड होती हैं। जैसे शादी, ओके, है ना? तो इट इज़ ऑल डेस्टिनी। उसी तरह से बिज़नेस में सपने तो हमारे बहुत होते हैं। कई बार सपनों से कहीं ज़्यादा मिलता है, कई बार सपनों से कुछ कम मिलता है। कई बार फ़ील्ड कोई और होती है और हम कुछ और होते हैं, या कई बार आप देखते हो कि बचपन में ये बोला जाता था कि डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस ऑफ़िसर या आईएएस ऑफ़िसर या इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे मल्टीपल लोगों की चीज़ें माइंड में आती हैं, पर फिर उसके बाद कहीं न कहीं जाके वो जब स्ट्रीमलाइन होते हैं तो कोई एक डेस्टिनेशन जो है उनका फ़िक्स होता है। तो मेरी लाइफ़ में हम लोग पहले फ्लोर मिल्स वगैरह में थे। मेरी जो एजुकेशन हुई जब मैंने एमबीए किया तब हम लोग एक्सपोर्ट्स वगैरह में और उसमें फ़ोकस कर रहे थे। हमने काफ़ी सारा स्पाइसेस और ग्राम फ्लोर वगैरह का एक्सपोर्ट्स किया, मंदसौर से और इंदौर से। और उसके बाद क्योंकि मेरी लाइफ में मैं जीवन प्रबंधन को बहुत महत्व देता हूँ और क्योंकि योग से भी जुड़ा हूँ और मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है फेवरेट, तो मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ कि लाइफ में बहुत सारे अलग-अलग आयाम होते हैं। स्वयं आप खुद हो गए, तो आपकी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी कैसा क्या है, वो हो गया। फिर उसके बाद कहीं न कहीं आपकी फैमिली का नंबर आता है। फैमिली के बाद हम देखते हैं तो बिज़नेस होता है और बिज़नेस के बाद समाज के प्रति दायित्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पैशन होता है, हम उसे हॉबी भी बोल सकते हैं, वो भी सभी लोगों की अलग-अलग होती है। तो मेरी जो हॉबी रही, क्योंकि बचपन से ही मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो भी सोशल सर्विस में थे, फादर लायंस में 37 इयर्स रहे। ओके, तो हमने यही देखा कि जब हम लोग ज़्यादा फेलोशिप और जब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करते थे, तो वो सर्विसेज़ में बहुत होता था। उस समय हमारी यहाँ पर फ्लोर मिल की इंडस्ट्री थी, टचवुड काफ़ी अच्छी चल रही थी। परंतु साइकिल जो थी, बिकॉज़ आई वाज़ अलोन, तो फैक्ट्री का प्रोक्योरमेंट जो मंडी से माल का होता था, फिर उसके बाद में पूरा उसको प्रोसेसिंग कराना, बनाना, रात भर गाड़ियाँ भरना और पैन इंडिया में माल जाता था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज़ डूइंग वेरी वेल, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी एजुकेशन हॉबी है, मैंने उसके बाद बहुत सारी डिग्रीज़ ली हैं, मैंने एलएलबी किया, फिर योग में एमए किया, पीएचडी किया, अभी मैं डीलिट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पीएचडी किसमें किया आपने? मैंने पीएचडी जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ नई अडॉप्ट की जाए मैनेजमेंट के हिसाब से, उसके ऊपर 6 इयर्स पीएचडी थी जो हमने फिर आगे सबमिट किया है यूनिवर्सिटी को। सो ये सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम लगता है। तो होता क्या था कि एक उस इंडस्ट्री के अंदर में हम बंधे हुए रहे, सुबह से रात तक हो गई और फिर बाकी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री को देखना चालू किया, एक्सप्लोर करना चालू किया, जहाँ मुझे लगा कि शायद पर्सनल बैठक जो होती है, उससे अगर बचा जाए
और एक अच्छी टीम के साथ प्रोफेशनली अगर किसी बिज़नेस को करा जाए तो वो क्या हो सकता है। सो उस समय हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे साथ में, पर ऐसा एज़ सच कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अपन एज़ अ कंसल्टेंट वर्क करेंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसके अंदर कि हम लोगों से मिलने की आपकी इच्छा है तो आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो, और पीछे से आपकी फैक्ट्री पे कुछ आपके ना रहने के कारण से प्रोडक्शन में कमी आएगी या लॉसेस हो जाएँगे स्टॉक्स के, गाड़ी कोई कम भर गई, ज़्यादा भर गई, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो इस पे वाइंड अप हो जाती है। क्योंकि बहुत सारा मेजर काम जो होता है वो बिल्डर का रहता है इसमें। तो हुँ। बिल्डर टेक्स केयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही टेक्स केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा फोकस एज़ अ कंसल्टेंट रहता है सेल्स का। तो मुझे लगा कि सेल्स जॉब। ये एक ऐसा फ्रीडम वाला काम है, जिसमें कि मैं अगर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझता हूँ, अपने इन्वेस्टर से मिलता हूँ, समझाता हूँ उनको, या वो मेरी टीम के साथ आते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो मेरी जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम, वो मुझे लगा कि इस फील्ड में बहुत अच्छी है, तो वहाँ से मैंने इसे एज़ अ करियर लिया। काफ़ी स्ट्रगल किए हमने, खूब मेहनत करी इसके अंदर, और मुझे नहीं पता था कि हम इसमें इतना ग्रो करेंगे कि आज 7 से 8 सिटीज़ में हम लोग बहुत अच्छे से इसे कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ भी हैं अलग-अलग रियल एस्टेट में। तो आप किसी भी एवेन्यू में बहुत डीप में जा सकते हैं, और चूँकि हमारी कंपनी का तो नाम टोटल रियलिटी सॉल्यूशंस है, तो हम लोग रियल एस्टेट सेल्स, उससे रिलेटेड लोन्स, उसके साथ में उसका जो लीगल काम है वो सारा, वो सभी चीज़ें इस तरह से हमने उसको सेंट्रलाइज़ की है कि जो प्लेटर है टू इन्वेस्टर हु इज़ नॉट ओनली सिटिंग इन माय सिटी, बट इफ इट इज़ ही इज़ अ क्लाइंट सिटिंग इन यूएस और यूके और समवेयर एल्स आल्सो, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग हमारी कंपनी की साइड से दें, कि जब उसकी डील कंप्लीट हो तो उसको लगे कि वो एक एमिरेट्स की जो फ़ील है फ्लाई की, वो वाली पूरी यात्रा उसने करी है। ऐसी हम कोशिश करते हैं हमारे कंपनी में। तो इस तरह की सिस्टम्स बेस्ड कंपनी हमने तब से बनाई, तब ऑनलाइन भी सिस्टम ज़्यादा नहीं होते थे। तो हम पोर्टल्स पे तब से रजिस्टर्ड हैं। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो तब से आते थे, और हम ऐसा नहीं देखते थे कि ये क्लाइंट अगर हमारे पास आया है तो इसका मैच्योर होना ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री पार्ट से थे तो हम लोगों ने पर क्लाइंट रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नहीं रखा। हमने हमारी टीम को सिर्फ़ बोला कि आप सर्विसेज़ पे और प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करो, और अगर आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करी, तो सेल्स अपने आप आएगी। वेरी नाइस। सो दिस इज़ द वे वी एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट, एंड आई वुड से दैट दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस करियर ओरिएंटेड, यू कैन से एवेन्यू, जहाँ की आपको बहुत सारी फ्रीडम है पर्सनल दूसरे काम करने की। आई 100% एग्री विथ यू। दिस इज़ द फील्ड एंड आपने बताया आप बहुत सारी सिटीज़ में भी है, सो कौन-कौन सी सिटीज़ में आप एक्टिवली एज़ टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस एक्टिव हैं? Primarily, we have different companies in different cities also, but our core focus lies in Mumbai, Thane, भोपाल, इंदौर, बैंगलोर एंड गुड़गांव। ये हमारे अभी वो सिटीज़ है जहाँ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं काफ़ी, और अपकमिंग में हम आगे टियर 2 में भी जाना चाह रहे हैं, और दूसरी कंपनी भी है। साथ ही हम सिंगापुर और दुबई का भी मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अरे वाह! जस्ट आई विल कवर अ बिट ऑफ फ्यू इन्वेस्टर क्वेश्चंस अगेन एंड देन जैसे कि आपने बताया आप इतनी सिटीज़ में हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू जंप इनटू द कंपैरिजन कि इंदौर का मार्केट खास करके उनसे किस तरह से कंपेयर होता है। बट गोइंग फॉर द इन्वेस्टर क्वेश्चन, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ कि रियल एस्टेट के इंदौर में ऐसे कौन से 3 माइक्रो मार्केट्स हैं? जैसे कई सारे रोड्स हो गए, बाईपास हो गया, सुपर कॉरिडोर, इंदौर उज्जैन, राऊ, इंदौर खंडवा। What are your 3 favorite micro markets that you would say investors should go for? सी जो आप कह सकते हैं कि पिछले 4-5 साल से जो एक मार्केट, एक स्टेडी मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से जो मार्केट चल रहे हैं, उसमें तो कॉरिडोर, उज्जैन रोड और बाईपास ये तो हैं ही। परंतु अभी 2-3 मुझे लगता है कि ऐसे भी मार्केट्स हैं जिनमें कि हम ना सिर्फ ये देखें कि वहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, परंतु कई बार कोई निश प्रोडक्ट पे, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि अगर रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी रिटर्न पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ ज़्यादा हो रही है। सो अभी आप ने देखा होगा कि हमारा जो एम10 का रोड है, वो एक्सटेंड होके सिटाडेल मॉल के पास से वो पूरा ब्रिज बनता हुआ फिर हमारा नागपुर हाईवे को टच हो रहा है।
सो आप इमेजिन करो कि जब ये ब्रिज पूरा बन जाएगा और वो जो एक्सेस है बाईपास को क्रॉस करने की, वो इतने अच्छे ब्रिज से हो जाएगी, तो वो जो पूरा रोड है उस पे कितनी सारी टाउनशिप्स आएंगी, कितने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, और किस तरह का डेवलपमेंट वो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। अगर हम बात करें तो वो सीधे हार्ट लाइन रोड होता हुआ सीधा एयरपोर्ट जा रहा है। उसी रोड पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, उसी पे बॉम्बे हॉस्पिटल रहेगा, उसी पे सिटाडेल मॉल है, और उसी पे आगे आपका घर हो जाता है, या वहीं पर ही ऑफिसेज भी आएंगे तो वहीं आपका ऑफिस भी हो जाता है। तो एक पार्ट वो है जिसका मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली, खंडवा रोड की ग्रोथ हमने देखी उस तरीके से उतना ज़्यादा आगे तक नहीं गया जितना रहना चाहिए, परंतु एक उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसके रेट्स आज की तारीख में पर स्क्वायर फीट वाइज सबसे कम है पूरे इंदौर में। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी खंडवा रोड पे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो 2,000 रुपये के आसपास हमें पर स्क्वायर फीट प्राइस पे मिल जाती है चीज़ें। तो चूंकि 6 लेन पूरा हो गया है, कुछ एक दो ब्रिजेस बाकी हैं, वो पूरे होने के बाद काफ़ी अच्छी वहाँ से एक्सेस हो जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा जगह है इंदौर खंडवा, जहाँ पर कि अच्छे अगर हमें कोई डील्स मिले तो रिटर्न अच्छा आएगा फ्यूचर में। Okay, and the third one you would say? एंड द थर्ड वन आई वुड से दैट हमें जब भी पता लगता है कि हमारी आउटर रिंग रोड की क्या मार्किंग्स है, तो जिस तरह से एबी रोड आया, हमने देखा एबी रोड के आसपास क्या ग्रोथ थी, रिंग रोड आया क्या ग्रोथ थी, बाईपास आया क्या ग्रोथ थी, और अब बाईपास की सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आउटर रिंग रोड की तैयारी है। सो एज सुन एज आवर इन्वेस्टर कम टू नो अबाउट दैट विच आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर दिस आउटर रिंग रोड विल गो, देन दे शुड इन्वेस्ट इनटू दैट। ओके, इसमें से एक खास रोड, हालांकि जो तीनों आपने मुझे बताया, आई थिंक दे आर वेरी स्पेशल एंड वेरी कोर इन्वेस्टर्स ओनली नो अबाउट दिस, which is why I think it's important that more people get to know. I personally also think सर कि इंदौर खंडवा रोड जो है, आई थिंक इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल, क्योंकि कुछ इंदौर में ऐसे रोड्स हैं जहाँ मेरे हिसाब से ओवर ट्रेडिंग हो गई है, प्राइसेस जो रियलिस्टिक होनी चाहिए वो है नहीं वहाँ पे। और अभी इंदौर का मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो माहौल है, कि आईटी के द्वारा बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, आईटी वर्कर्स आएँगे, तो इनको रहने के लिए कुछ लगेगा। एक आदमी जो महीने का 1 लाख, 1.5 लाख कमाता है, फॉर हिम टू अफोर्ड समथिंग दैट इज़ लेट्स से 5,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 50 लाख का हो गया, गोज़ आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी, फिर वो उस पे कंस्ट्रक्शन करता है एक्सेट्रा। सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक इंदौर खंडवा रोड हैज़ अ वेरी रियलिस्टिक आउटलुक, जहाँ पे ओवर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से नहीं हुई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक अ इसमें वेरी वेरी रियलिस्टिक रेट एंड वेरी गुड प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट एज़ वेल, बिकॉज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ वो कनेक्ट होगा ओमकारेश्वर से, यस, है ना? एंड दिस विल बी ओमकारेश्वर से महाकाल मंदिर, उज्जैन। आई थिंक दैट विल बी अ सुपर फास्ट, आई थिंक 3 आवर्स हाईवे कवर ओपन टू हाँ, मतलब पीपल। ऑलरेडी ओंकारेश्वर वाला जो रोड है काफ़ी सारा रेडी हो गया है। तो अब चूँकि वो पूरा आगे तक जाएगा, तो वो सारे भी जो लोग खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन साइड के लोग हैं, वो भी अगर इंदौर में कुछ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये पार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रहेंगे तो वहाँ पास पड़ेगा। कृषि रोड पे आईआईटी है, आईआईएम बस हाँ, पास में है। तो मतलब हम अगर उस रोड की बात कर रहे हैं, तो उसके रेट्स के कारण बात कर रहे हैं कि इस रेट में आज भी वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जितना रेट कम होता है और अच्छी लोकेशन पे होता है, तो परसेंटेज ग्रोथ जो है वो ज़्यादा आती है। आप अगर आज 5,000 रुपीज़ पे 500 रुपये की ग्रोथ देखेंगे, और एक 2,000 रुपये के प्रोडक्ट पे 500 रुपये की ग्रोथ देखेंगे, तो वो वहाँ 10% है या 25% है। करेक्ट। सो इन दैट वे वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जहाँ पर कि परसेंटेज वाइज रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घट जाते और सिमरोल भी बड़ा अच्छा एक हाइलाइट है, क्योंकि अगर आप देखें इंदौर खंडवा रोड पे आईआईटी सिमरोल आ गया। आई थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी कंफर्मेटरी फॉर इन्वेस्टर्स, प्लस गवर्नमेंट प्लानिंग्स तो हम सब जानते ही है, उस जो अच्छी है। आगे बढ़ते हुए, इसमें अगेन जैसे हमने 3 पॉकेट्स अभी आइडेंटिफाई किए, इसमें from your ideology, what would be top one, just so that we can speak more? Can we say that is Indore Khandwa आपके लिए? हैं। नहीं, मुझे लगता है कि परसेंटेज ग्रोथ जो है वो शायद सिटाडेल से Citadel के रिचला जो नागपुर हाईवे है, नागपुर है। इस पे ग्रोथ की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। इसमें what would be the ideal price for entry? अगर आप देखें अप्रॉक्सीमेट, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स, बट आइडियल 1000 रुपए के आसपास के अगर अपन देखें ऊपर नीचे, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रिसाइज अप्रॉक्सीमेट होल्ड पीरियड दैट यू वुड थिंक, जिस देखिए, पे आप इसमें stay साइकिल कर सकते होती है।
आप ये मान के चलें कि जब इसका प्लान आज से 2 से 3 साल पहले हुआ, तो ऑलरेडी एक साइकिल ऑफ इन्वेस्टर्स तो उसके अंदर चले गए, जो कि बिल्कुल इनिशियल जब भी कोई लीड के ऊपर कुछ काम हो रहा होता है तब आते हैं। सो वो जो रेट आज से 3 साल पहले थे, वो रेट ऑलरेडी आज की तारीख में काफ़ी अच्छे से एप्रिशिएट हो चुके हैं। ओके, तो वो वहाँ पर उस समय हमारा एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं आता है जो कि आगे एंड यूज़र हो। वो इन्वेस्टर आते हैं जो कि जिनका कि रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो वो लोग ने ऑलरेडी 3 साल पहले इन्वेस्ट किया, 2 साल पहले इन्वेस्ट किया, उनको अच्छे रिटर्न्स आए। कई सारे लोग एग्ज़िट ले रहे हैं, कई सारे लोग होल्ड पे हैं। अब इसके बाद जब ये लोग ये जो ब्रिज का काम अभी और बढ़ेगा और ये जो पूरा लिंक रोड बन रहा है, तो इसके आसपास में काफ़ी सारी टाउनशिप्स आएँगी। उन टाउनशिप्स के अंदर में जो रेट रहेगा, वो कंपैरेटिवली जो डेवलप्ड टाउनशिप्स है मेन रोड पे उनसे कम रहेगा, परंतु एक्सेस बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर हैबिटेशन आएगा और हैबिटेशन आएगा तो उसके लिए जो एंड यूज़र्स हैं, उनको 2 तरीके से फ़ायदा मिलेगा। एज़ अ इन्वेस्टर भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एग्ज़िट के लिए उनके पास उस टाइम पे कोई ना कोई एंड यूज़र होगा या वो फ्यूचर में चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा घर बनाना है। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो सिटी के लगभग सेंटर में है, आस-पास सारी चीज़ें डेवलप्ड है और उस रोड पे आगे सीधा हाईवे है और अंदर सिटी में जा रहे हैं तो टाइम बच रहा है। तो उनको रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है, मुझे ऐसा ओके, लगता है। या बिकॉज़ ऑफ द प्लानिंग्स एंड because of planning, because of the hugeness of the whole projections and all, and its geographic placement also. ओके, ज बट आई वुड स्टिल लाइक टू डिग डीप, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, बिकॉज़ इवन फॉर माय ओन क्लैरिटी, आपने बोला कि एक समय था 3 साल पहले, जो एक ऐसा था जहाँ अर्ली इन्वेस्टर्स ने जंप इन लिया, उन्होंने फ़ायदा बनाया और वो अब निकल गया है। You still feel that there's a good amount of investors that can still jump in and make a profit out of this? या देन वो डिपेंड करेगा कि कौन से वाले इन्वेस्टर है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है। अच्छा, एंड क्योंकि अगर मान लीजिए उस समय किसी की थॉट प्रोसेस इन्वेस्टर की कि उसको एक क्लोज कैंपस में किसी प्लॉट पे इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए तो वो जगह थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो उस टाइम एग्रीकल्चर लैंड थी। तो उसका तो प्रपोजिशन ही नहीं था उस टाइम, उसका प्रपोजिशन तो अब आएगा, जब वहाँ पर टाउनशिप्स वगैरह कटेंगी। उसके बाद से उसके आगे का जो पेस है, वो उसको मिलेगा। पर अगेन कमिंग टू द उज्जैन रोड पॉइंट, उज्जैन रोड हैज़ ऑल्सो गुड प्रपोजिशन, पर अभी जो डिमांड सप्लाई का जो हमने आपने बात करी, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए वो थोड़ा-सा रुक गया है। अदरवाइज़ इन फ्यूचर अगर हम देख रहे हैं तो उज्जैन की साइड से भी ग्रो हो रहा है, इंदौर की साइड से ग्रो हो ही रहा है और सिंहस्थ आने वाला है। तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है, हमेशा रहेगा। हम अगर कॉरिडोर की बात करें, तो कॉरिडोर पे सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टर्स थे, उनको 5 साल का हॉरिज़न था कि हमें कोई जल्दी नहीं है और ना हमें रहने जाना है, पर आराम से बनेगा। आज की तारीख में अब उसके अंदर लोगों के कमर्शियल्स काफ़ी सारे हमारे इंदौर के बिल्डर्स हैं जिनके उस रोड पे कमर्शियल्स आ रहे हैं। उसी रोड पे हम वहाँ से इंदौर के बीच में बात करें तो ताज आ रहे हैं 2 से 3 होटल। काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें आ रही है। तो ये बताता है कि हैबिटेशन बहुत जल्दी उस रोड पे आने वाला है और इसी कारण से फिर हैबिटेशन आएगा, तो ग्रोथ वहाँ भी होगी। अंडरस्टूड, ओके, अमेजिंग। सो दैट गिव्स अ वेरी क्लियर आउटलुक, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने बताया। अ, अगर कोई आदमी व्हिच इज़ ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, देयर इज़ म्यूचुअल फंड्स, why would he be attracted, or what would you say, what would you suggest him for investing in real estate compared to these other markets? सी मैं तो हमेशा जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग किसी की क्लाइंट के साथ में बैठ के करते हैं, तो हम लोग तो ये बोलते हैं कि यू शुड पुट एग्स इन ऑल द बास्केट सेपरेटली। सो थोड़ा-थोड़ा हम सब जगह करें। पर देखिए, स्टॉक मार्केट में एक शब्द है क्रैश। कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया या मान लीजिए किसी कंपनी के साथ में कुछ इवेंट बट हुआ तो आपके हाथ में तो सिर्फ़ वो डॉक्यूमेंट्स ही हैं। पर कभी कोई ऐसी रियलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है आपके हाथ में जो कि आपका खुद का है, जो आपके पोज़ीशन में है, अदर दैन दोज़ पेपर्स। सो अनटिल एंड अनलेस कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और आप सेफ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू काम कर रहे हैं या आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, तो इट इज़ गुड। बट फिर भी रियल एस्टेट में क्योंकि रेट्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और आपके पास में आपका प्रोडक्ट रहता है, इन केस फ्यूचर में
आप किसी भी तरह का उस पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उन पेपर्स को पर्सनल यूज़ के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक 2-3 चीज़ें साथ में लेके आता है। और फिर तीसरा जो पार्ट है गोल्ड वाला, तो गोल्ड के अंदर भी क्या है, एक लिमिटेशन है कि उतना तक आप कर सकते हो, पर यहाँ पर वो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। गोल्ड ने अभी बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है, पर इन कंपैरिजन टू दैट आल्सो आई फील कि रियल एस्टेट इज़ अ बेटर बेट एज़ फार एज़ द क्वांटम इज़ कंसर्न्ड। सो आप सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, पर रियल एस्टेट की इतनी प्रायोरिटी तो सबसे पहले रखें कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो जहाँ से बिज़नेस कर रहे हैं वो आपका पर्सनल हो, आपका घर आपका पर्सनल हो। और अगर बहुत अच्छा है तो कोई फार्म हाउस हो या और भी इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वो कंटिन्यूटी में आप उनका यूज़ भी कर पाते हो और एट द सेम टाइम एप्रिसिएशन भी होता है। इट्स क्वाइट सेफ एज़ वेल। मैं ये एक्चुअली कहानी सुन रहा था फ्रॉम समवन हू आई रिस्पेक्ट अ लॉट। तो उनका मुझे ये कहना था कि यार सिद्धांत, कुछ भी करो, आई कैन ऑलवेज़ बाय रियल एस्टेट। दिस इज़ वे बिफोर इवन आई गॉट इनटू द फील्ड। उनका आउटलुक ये था कि यार आप कुछ बेच भी रहे हो रोड पे, है ना? कि कहीं मार्केट लगा हुआ है, आप कुछ बेचना शुरू करते हो, मानो कुछ खाने की चीज़ आप बेच रहे हो, तो आप कहीं भी जाके खड़े होगे, जिसका भी मार्केट है बोलेगा आगे बढ़ो, है ना? यहाँ से आगे निकलो। और अगर आपकी 10 बाय 10 की भी आपकी छोटी-सी एक खड़े रहने की जगह है, जहाँ पे आप कुछ भी बेच सकते हो, तो यहाँ पे आप बिज़नेस कर पाओगे। राइट। एट लीस्ट यू हैव अ प्लेस टू स्टार्ट समथिंग एज़ अ एसेट। सो आई थिंक इट वर्क्स इन अ लॉट ऑफ डायरेक्शंस रियल एस्टेट। और अब गोल्ड भी आप कितना, आप 2 करोड़ का गोल्ड रखोगे, देन यू आर नॉट सेफ, या कीपिंग दैट विथ यू। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे कि सर अभी अपन ने बात की कि कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है, सो व्हाई वुड ही बी मोर अट्रैक्टेड टू रियल एस्टेट? इसमें ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए, रेंटल्स तो है ही एक आउटलुक, बट दे एक्सपेक्ट अ रीअकरिंग इनकम, राइट? आज मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कभी भी, तो मैं कभी भी अपना पैसा उधर से निकाल सकता हूँ स्टॉक्स में से, अप्रिसिएशन पे या डेप्रिसिएशन पे, जो भी हो, बट व्हेनेवर आई सॉर्ट ऑफ हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फ्लो। रियल एस्टेट में बड़े इन्वेस्टर्स मैंने यूजुअली खेलते हुए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए देखे, क्योंकि उनके पास बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई ऐसा आदमी है जो रिकरिंग चाह रहा है रियल एस्टेट से, सो इज देयर एनी अदर एस्पेक्ट अदर देन रेंटल्स जो रियल एस्टेट में एक अच्छा रिकरिंग इनकम का कर्व देता हो? देखिए इसमें रियल एस्टेट दूसरे इन्वेस्टमेंट से इस तरह भी बेटर है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, मोदी जी हमारे सेंटर में बैठे हैं और यहाँ पे हमारे मोहन यादव जी बैठे हैं, तो सिंक्रोनाइज तरीके से सारी पॉलिसीज़ आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी तरह से रियल एस्टेट में जब आप कोई प्रॉपर्टी को लीज़ आउट करते हो, तो आपको 2 तरह से इनकम होती है। एक तो इनकम होती है आपको उस रेंट से, और दूसरी इनकम जो होती है वो होती है उसके एप्रिसिएशन से। सो ये दोनों तरह की इनकम होती है, जो इनकम आपको शेयर ट्रेडिंग वगैरह के अंदर में थोड़ा-सा उस हिसाब से नहीं होती है। ओके। आपने जो प्रश्न किया कि कोई ऐसा तरीका जो कि इसमें इनकम दे और उसमें रेंटल के अलावा हो, तो इसमें सीनियर सिटीज़न्स के लिए एक पॉलिसी है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे कई सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, या हम भी खुद प्लान करते हैं कि एक समय ऐसा हो सकता है कि उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो शायद यहाँ ना रहे, बाहर रहे, या वो कहीं और रहे, और हमको हमारी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और हमने हमारे अपने करियर में अच्छा एसेट कोई बनाया है। तो मान लीजिए आपका एक घर है और उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। तो एक सिस्टम होता है रिवर्स मॉर्टगेज का, उसमें आप उसको बैंक में रख दीजिए, वो उसका वैल्यूएशन करेंगे। आपकी एज एक पर्टिकुलर होती है जिसके बाद में वो ये लोगों को ये वाली फैसिलिटी देते हैं, और वो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बताते हैं कि पर मंथ आप इतना पेमेंट ले सकते हैं। ओके, तो आपका पर मंथ जो है वहाँ से उतना पेमेंट आना चालू हो जाता है। फिर आप जब तक रहते हैं या जब तक आपकी इच्छा है, तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ना रहने के बाद जब ये प्रॉपर्टी बैंक को लिक्विडेट करनी होती है, तो वो, अगर आपने कोई विल बनाई है, तो उसके बेसिस पे जो भी लीगल हेयर्स हैं आपके, जिनका नाम आपने दिया, उनको कॉल करती है। उनको बोलती है कि आपने अपने जीवन में इतना अमाउंट एज़ अ इंस्टॉलमेंट लिया है,
और उस पर इतना रेंट इतना इंटरेस्ट इनकर हुआ है, टोटल अमाउंट इतना है, अगर वो लोग पे करते हैं तो बैंक वो प्रॉपर्टी रिलीज़ करके उनको दे देती है। अदरवाइज़ बैंक उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करती है, अपने एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करके आपके बिल के हिसाब से जिसको भी वो प्रॉपर्टी आपने असॉर्ट की हो, उनको बैंक को प्रॉपर्टी दे देती है। तो ये एक ऐसा सेफ ज़ोन है फाइनेंस का, जहाँ पर कि दुख-सुख में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप जिस तरह से पेंशन प्लान होते हैं गवर्नमेंट जॉब में और उसमें, उसी तरह से अगर आपने आज मेहनत करके एक अच्छे एसेट क्रिएट कर लिए, तो वो एसेट भी आगे आपको, अगर रेंटल इनकम से इनकम नहीं चाहिए, कई बार कई लोगों को डर होता है कि अरे मैंने किराए पे दे दिया, मैं तो अकेला हूँ या मैं सीनियर हूँ, ऐसा ना हो कि खाली नहीं हो या और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसके लिए ये भी फैसिलिटी एक है। ओके। दूसरा अभी आप जो इसके पहले बात कर रहे थे कि अ, कुछ ऐसे हमारे युवा भी हो सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी उतनी ना हो, परंतु चूँकि वो अच्छी पोस्ट पे हों, उनके पास आगे 30 से 40 साल तक काम करने का उनका टेन्योर हो, तो उस स्थिति में क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या होता है कि एक एक्स अमाउंट 10-15%, 20%, आप अगर आपके पास 20% है, तो बैंक के जो हाउसिंग लोन होते हैं, वो लगभग 8 से 9% के बीच में लोन होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको ऐसी दिख रही है, जो प्रॉपर्टी आपको 12 से 15% के बीच में एप्रिशिएट कर सकती है, तो हमारे साथ कई ऐसे भी युवा हैं जो कि अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं, बाकी का बैंक फाइनेंस कराते हैं और वो उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो एग्ज़िट भी ले लेते हैं, तो वो जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज है इंटरेस्ट का, वो भी उनको मिलता है। तो इस तरह के प्रपोज़िशंस भी हैं जहाँ पे कि अगर कैलकुलेशन के साथ में किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठा जाए, तो प्लानिंग्स करी जा सकती है। Quite nice strategies. I think then again it comes back to कि the importance of a realtor, यस, राइट? कि आप आओ, आप बात करो, आप बताओ कि आपकी क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, एंड all of these tactics can be used to give people the benefit of buying a property in real estate. Amazing. अब just to move forward to compare Indore, I think we are almost at the last phase of this podcast, बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, योर कंपनी टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस एंड अदर कंपनीज दैट यू हैव ओपन्ड जो इन इन जगहों पे काम करती है, um, क्योंकि कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एज मेफेयर, इंदौर, दुबई और लंदन, इन तीनों सिटीज़ में जब हम काम करते हैं तो बहुत अलग अलग मार्केट्स है। लंदन के मार्केट में कई बार मैंने पॉडकास्ट पे बोला भी है, अप्रिसिएशन इज़ वेरी लिमिटेड, नो बेनिफिट्स, तो राइट, आप आपने वहाँ पे बड़ा घर ले भी लिया तो आप खुद रहने ही नहीं जा सकते। सो वी हैव ओनली अ वेरी स्पेसिफिक क्लाइंटेल जिनको हम केटर कर सकते हैं फॉर पीपल हु वुड वांट टू बाय इन लंदन। दुबई का तो मार्केट आप जानते ही है सर, यू 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 बीन वर्किंग देयर, इट्स क्वाइट अ फास्ट पेस्ड ट्रेडिंग मार्केट, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉफिट्स निकाले जा सकते हैं, प्री लॉन्च बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, व्हाइल इट्स क्वाइट सेफ एज वेल अगर आप बड़े डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। Like for example, we specifically like to work with Damac Group because उनके साथ हमको सेफ्टी सिक्योरिटी बेनिफिट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। अ, हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे इंडिया में, हम लोग स्पेशलाइज इंदौर में ही करते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस इंदौर में कई सारी सिटीज़ में बहुत इन डेप्थ रहा है। सो इसमें आपके हिसाब से क्या कंपैरिजन रहेगा? वेयर डू यू थिंक इंदौर्स मार्केट स्टैंड्स आउट स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट compared to Mumbai, Bangalore, Gurgaon, and where do you think Indore market lacks still? मतलब दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व क्या रहेंगे इंदौर मार्केट के इसमें? देखिए इंदौर को जो बेनिफिट है, वो सबसे पहला तो यही है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज़, जो कि बड़ी सिटीज़ में नहीं हो सकता है। कम वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किसी को करना है, तो वो अवेलेबिलिटी इंदौर उनको प्रोवाइड करता है। करेक्ट। क्योंकि आज मान लीजिए कि 25-30 लाख रुपए में भी अगर किसी को कोई प्लॉट लेना है, तो बॉम्बे में तो नहीं मिल सकता, पर उसको यहाँ मिल सकता है। और वो उसके साथ में ये देखता है कि सिटी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ हो। तो वो जो सिटी की ग्रोथ है, कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हम लोग हैंडल करते हैं जो कि बिकॉज़ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंदौर, जिसमें कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, जिसमें हम उसकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन की बात करें, इसके अंदर हम
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, कम्युनल हार्मनी की बात करें, सीज़न जो है गर्मी सर्दी वगैरह सब मॉडरेट क्लाइमेट है। एंड सबसे अच्छी बात कि जो यहाँ का खाना है लाजवाब है। मालवा का जो फूड है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो लोगों का वेलकमिंग नेचर है, जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल सबका जिस तरह से स्वागत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपील करती है उन सब लोगों को भी जो कि शायद 50-60 साल के बाद में आगे की अपनी लाइफ एक अच्छी सिटी में बिताना चाहते हैं, तो वो लोग भी इंदौर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसके कारण से जो इंदौर में लगातार डिमांड बनी हुई है। आसपास के हमारे जितनी भी सिटीज़ हैं उनके अंदर में जो बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, आज किसी का बच्चा यूएस है, किसी का ऑस्ट्रेलिया है, किसी का अमेरिका है, या किसी का इनफैक्ट इंडिया में भी अगर बेंगलोर, मुंबई वगैरह है, तो वो अगर सिटी अगर उनकी मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है, बुरहानपुर है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें तो इंदौर में करें, क्योंकि उनको लगता है कि इंदौर शायद एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पे कि फ्यूचर में अगर उनके बच्चों को पढ़ना है तो फैसिलिटीज़ है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो सब अवेलेबल है। हर सिटी में मेरे ख़्याल से इंदौर से 1 से डेढ़ घंटे में बाय फ्लाइट पहुँचा जा सकता है। तो ये सारी प्रपोज़िशंस जो हैं, वो इंदौर को इस लेवल पर लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं और हो गया। It took time and it is on paper and it is visible to everybody that these are the points because of which Indore is much far better as far as the investments are concerned. उसके बाद फिर वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन कहाँ करना है, क्या डील मिल रही है, कौन सी ज्योग्राफी होनी चाहिए, वो पर्सनल होमवर्क तो होगा ही। पर ओवरऑल जब हमें मैक्रो फ़िल्टर लगाना है, तो इंदौर का एज़ अ इन्वेस्टमेंट फ़िल्टर काफ़ी अच्छा स्थान आता है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सर इस पे, क्योंकि आई एम समवन, मैं तो 16 साल की उम्र से ही घर से निकल ही आता फॉर लिविंग अ लाइफ बाय माई सेल्फ। फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज अमेरिका। जो अमेरिका में भी रहा, लंदन भी रहा, यूके में भी। आई लिव्ड इन लेस्टर, लंदन। एंड आई वुड से कि मैं इन जगहों पे रहा हूँ रैदर देन लोग घूमने जाते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जब आप रहते हो तो आपको बहुत कोर वैल्यूज़ लोगों की पता चलती है। एंड आई वुड से सर, इंदौर जैसा कुछ नहीं है, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि लोग खुश हैं यहाँ पे। हार्मनी बड़ी अच्छी है, खाना तो फ़ेमस है ही। सो आई आई हाइली और एक और चीज़, यहाँ पर मूवमेंट भी बहुत कंपैरेटिवली ईज़ी है। मतलब आप एक कोने से दूसरे कोने जाना चाहो, अपनी गाड़ी से आप जा सकते हो, और लोग भी पहचानते हैं। तो एक जो आपस में जो तालमेल है, सभी चीज़ें, इन सबको मिला-जुला के शायद इंदौर इस क्वाइट पोज़ीशन पे पहुँचा है। अगेन जस्ट क्लोजिंग ऑन टू द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट इन चीज़ों में, हालांकि आपने ये बताया कि बिकॉज ऑफ द हाउ मेनी पीपल वुड वांट टू कम टू लिव हियर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी, बट इफ वी टॉक प्योरली नंबर्स एंड इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा सा क्या, मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को और इन डेप्थ कर लेता हूँ। लेट्स से कि बैंगलोर में आज, बैंगलोर मुंबई फ्रॉम माय आइडियोलॉजी वेरी गुड रेंटल्स, राइट? एंड अप्रिसिएशन भी होता ही होगा मार्केट में। हम अज्यूमिंग कई सेक्टर्स में आउटसाइड ऑफ बैंगलोर, जैसे आज देवनाली एरिया हो गया या होस्कोटे हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया इन बैंगलोर, क्वाइट क्वाइट फास्ट ग्रोइंग एरियाज। सो इन कंपैरिजंस में रियल एस्टेट वाइज, where do you think is more of a higher return? Is it still in Indore? Do you think Indore, being a tier 2, 3 city, has that area जहाँ पे appreciation भी ज़्यादा मिलता है और rentals भी बड़े अच्छे मिलते हैं? या फिर you would say Mumbai, Bangalore, Gurgaon are the places as per you? सी दोज़ प्लेसेस आर ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि जहाँ पर नई स्कीम्स आती हैं, वहाँ पर तो डेवलपमेंट आता ही है। अगर हम मुंबई की बात करें, तो पिछले 3-4 साल से हमें पता है कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट आने वाला है। और अगर आप उसका पीछे का ग्राफ देखेंगे और आगे के 3-4 साल देखेंगे, तो बट नेचुरल है कि वो जो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, उसके आसपास की जो ग्रोथ होगी वो एक्स्पोनेंशियल होगी, और एक नया मुंबई उसके आसपास डेवलप होने वाला है। तो जब भी कोई ऐसी इस तरह की कोई बड़ी चीज़ आती है, तो उस पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि वो सिटी कौन-सी है। क्योंकि वहाँ पर फिर रेट भी थोड़े से शुरू में कम मिल जाते हैं, सिटी से दूर है तो वो भी प्राइसिंग भी थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती है। आपने जिस तरह से देवनहल्ली या होसकोटे की बात करी, वो बेंगलोर का एक ऐसा नॉर्थ बेंगलोर का डेवलपिंग एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल भी है, एयरपोर्ट के पास भी है, और तब अभी लोग यहाँ पर आए नहीं हैं रहने के लिए, पर मूवमेंट बन रहा है। सो अपकमिंग एरियाज़ इन दोज़ सिटीज़ वेयर यू हैव से आपको लगता है कि आप 3 से 4 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप भूल गए हो,
तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे जगहों पे भी बहुत अच्छा रिटर्न आता है। बट आप यहाँ पर फिर शॉर्ट टर्म अप्रोच से मत आइए, वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए, कम से कम 3-4 साल आप उस इन्वेस्टमेंट को रखिए, तो देन द ग्रोथ विल बी वेरी नाइस। एंड इंदौर यू वुड से इज मोर शॉर्ट टर्म भी आप निकाल सकते इंदौर पे चूँकि जो ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी हैबिटेशन भी आ रहा है, पर फिर भी कंपैरेटिवली रेट कम है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का थोड़ा रिटर्न जल्दी आ जाता है। या Okay, amazing. We'll jump on. I think we have quite clearly gone through the differentiation comparison Indore, Mumbai, Bangalore, Gurgaon. वैसे गुड़गांव भी बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है सर। मेरे मुंह से गुड़गांव निकला तो मेरा माइंड उस पे जाता है। अ, आपका क्या ओपिनियन है? जस्ट एक थोड़ा सा साइड क्वेश्चन में ओवरऑल हाउ इज गुड़गांव मार्केट, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत गड़बड़ चीज़ें दोनों सुनने को मिलती है गुड़गांव मार्केट। देखिए गुड़गाँव का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें मेजर रोल डीएलएफ ने प्ले किया। ओके। एंड डीएलएफ की जो प्लस पॉइंट्स थे वो ये थे कि दे वर वेरी फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट वाज डन इन अ वेरी प्लान्ड वे। इनफैक्ट अभी जो उनका जो टॉप नॉच प्रोजेक्ट है, जो कि डहेलियाज़ लॉन्च हुआ है, पहले मैग्नोलियाज़ था, कैमेलियाज़ था। तो आप सोचिए कि अगर 100 करोड़ का एक फ्लैट भी वहाँ सेल हो रहा है और उसके बायर्स हैं, तो वो किस तरह की जगह होगी और क्या मोमेंटम वहाँ पर रहेगा। अगर वहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन सिस्टम है, वो सारा का सारा अगर मैनेज हो जाए, तो इट इज़ सुपर्ब प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज़ इट हैज़ इट्स ओन क्वालिटीज़। वहाँ पर लोग विलास में भी रहते हैं, वहाँ पे फ्लैट्स भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ से भी कम्युनिकेशन, कम्यूटेशन प्लस वहाँ पर डीएलएफ का जो ऑफ़िस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इतना अच्छा है कि वहाँ बड़ी कंपनीज़ के सबके हेडक्वार्टर्स भी हैं। पर वहाँ पर सिर्फ वही प्रॉब्लम है कि जो पॉल्यूशन अब हो गया है या अब जिस तरह के रेट्स हो गए हैं, तो थोड़े से वो एक नॉर्मल पर्सन से आउट ऑफ रीच हो गए। अदरवाइज़ जो दिल्ली से जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग पहले गुड़गाँव ही प्लान करते हैं और उसके बाद फिर वो अदर सिटीज़ देखते हैं। सर एक ये मतलब ये प्योरली मतलब मेरे पास कोई एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स या वैसी नॉलेज बेस्ड नहीं पूछ रहा, बट आउट ऑफ जस्ट इंटरेस्ट मैंने कई वीडियोस में और लोगों से सुना है जो वहाँ पे काम करते हैं, मेरे कुछ पार्टनर्स जिन्होंने गुड़गांव में काम किया है। उनका ये कहना है कि कई सारे बंजर मॉल्स रखे हुए हैं, कई सारी ऐसी जगह बनी हुई कमर्शियल एरियाज जो रेंटल और इन यूज़ आए ही नहीं। उसमें ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर ने खरीदा, प्रोबेबली ट्रेड हुआ और एंड यूज़र आ ही नहीं पाया। यू थिंक दैट इज़ अ रियलिस्टिक सिचुएशन या ऐसा नहीं चल रहा आपके साथ? ऐसा कुछ चीज़ों में देखिए नोएडा में भी हुआ था और वो सिचुएशंस उसी टाइम की हो जाती है जबकि सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड उतनी रहती नहीं है और उनको दिखता है कि अगर इसके बाद इसके ऊपर बनाया तो लॉसेस होंगे। या मान लीजिए कहीं न कहीं अगर बिल्डर बीच में ही प्रॉब्लम में आता है, तो चूँकि प्रोडक्ट पहले से सोल्ड ऑफ है, तो और फिर वो रुक जाते हैं, नहीं बना पाते, तो वो चीज़ें आ जाती है। पर वो पोज़ीशन का किसी पर्टिकुलर सिटी की ज़िम्मेदारी नहीं होती है उस पोज़ीशन की। वो उन पर्सनल बिल्डर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को पूरा करें और ये सारी चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें तब हुई थी जब रेरा नहीं आया था और रेरा आने के पीछे का रीज़न भी ये पर्टिकुलर पॉकेट्स भी रहे। ओके। तो जहाँ पे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये अपने अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया, परंतु वे आज तक अपार्टमेंट्स के ईएमआई भी भर रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिला और साथ में जहाँ रहते हैं वहाँ का किराया तो चालू ही है। तो यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए रेरा अस्तित्व में आया और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज है क्योंकि बिल्डर पेनलाइज़ होते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी प्रोफ़ेशनलिज़्म और सिस्टम के अंदर में चीज़ें जो है, वो चेंज हुई है। आई थिंक दैट्स क्वाइट अ नाइस आंसर, क्योंकि रेरा की वजह से आई थिंक देयर हैज़ बीन अ ह्यूज यूनिफ़ॉर्मिटी आई है। एंड आई एम श्योर ये सारी चीज़ें देखते हुए ही रेरा बना भी होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक लास्ट हमारा जो कस्टम वाइज एक रैपिड फायर होता है छोटा सा, 1 ही मिनट और लूंगा मैं आपका। सो लेट्स गो विद दैट, लेट्स सी व्हाट यू फील। वन बिगेस्ट माइक्रो मार्केट यू वुड बाय टुडे एंड होल्ड फॉर 5 years? सी माइक्रो मार्केट में हम अगर बात करें तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट तो प्लॉट होना चाहिए और एरिया जो है वो खंडवा रोड बहुत अच्छा है। खंडवा। हाँ, और अगर सैचुरेशन ना होता तो मैं ज़रूर उज्जैन रोड को भी प्रेफ़र करता।
Biggest mistake investors keep repeating in Indore. मैं ये समझता हूँ कि बिगेस्ट मिस्टेक की अगर आप बात करें तो ओवर इन्वेस्टमेंट है। Over investment. इसको समझाना चाहूँगा कि जब तेज़ी आती है तो हमारे जो कंसल्टेंट ब्रोकर्स भाई हैं वो भी बोलते हैं कि मान लीजिए किसी के पास में 2 प्लॉट लेने की कैपेसिटी है, उसके पास में मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ है, तो वो उनको बोलते हैं कि देखिए इंस्टॉलमेंट बेस्ड काम है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद ही मैं आपको एग्ज़िट करा दूँगा, या बिल्डर को इन्वेस्टर को भी ऐसा लगता है। तो वो उस 50 लाख से वो 2 प्लॉट पूरे ना खरीद के 25 लाख के, वो 10-10 लाख से 5 प्लॉट खरीद लेते हैं, 50 लाख लगा देते हैं, और उस टाइम पे जब एप्रिसिएशन नहीं होता है या वो ब्रोकर उनकी रीसेलिंग नहीं करा पाते हैं, तो बिल्डर की तरफ से कॉल आता है पेमेंट का, और चूँकि इन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, उतनी कैपेसिटी तो नहीं होती, क्योंकि 25 लाख के अगर आप 5 प्लॉट खरीदोगे तो 1 करोड़ 25 लाख होना चाहिए आपके पास। जबकि आपने 50 लाख से आपने फ्लावर प्लॉट खरीद लिए। तो ऐसे टाइम पे ये जो हो रहा है पर्टिकुलरली अभी, वो यही हो रहा है कि बिल्डर को क्योंकि टाइम से उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही, तो वो उतनी स्पीड से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे तो एंड यूज़र नहीं आ पा रहे। एंड यूज़र नहीं आएगा तो फिर वो इन्वेस्टर इसका प्लॉट खरीदेगा कौन? तो ये साइकिल ख़राब होती है। तो मैं इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्री के पहले तक के फुल अमाउंट तक का जितना पेमेंट आपके पास है, वो उतने का ही आप प्रोडक्ट लें, और थोड़ा-सा विज़न आप लॉन्ग टर्म रखें। 2 से 3 साल का विज़न रखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आएँगे। तो अच्छा, ओके। रेंटल यील्ड और अप्रिसिएशन, इंदौर में अभी क्या मेजर जीत में रहता है? व्हाट विंस? इंदौर में एप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा लोगों को दिमाग में है, क्योंकि रेंटल यील्ड यहाँ की कंपैरेटिवली कम है। रेसिडेंशियल्स में आप देखेंगे तो लाइक 25-30 पैसा, अगर आप मानेंगे तो परसेंटेज में बात करूँ तो साल के, तो लगभग 4-5% के आसपास होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। और फिर 6 से 7% मैक्सिमम आप उसको कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स वगैरह में देख सकते हैं। तो वो थोड़ा-सा कम है, एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा है। आई एग्री विथ यू इसमें तो बहुत क्लियरली। आइडियल टिकट साइज सर फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन इंदौर? क्या होना चाहिए ये तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ, ये है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे 15-20 लाख से भी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं। वन सिटी आउटसाइड एमपी, आप डिप्लॉय करेंगे फ्रेश इन्वेस्टर कैपिटल इन टुडेज टाइम? मुझे अभी नवी मुंबई का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। जी, ऑफ कोर्स जो एयरपोर्ट आपने बताया यस, उसके हिसाब से। उसी के आसपास। Gajendra sir, thank you so much for joining our podcast today. It was really a pleasure speaking with you. Every time I speak with you, I get to learn new things about real estate. And again, thank you very much for spending time and coming here. Thanks a lot, Siddhant, and wish you all the best. And you're doing wonderful with this podcast. आप अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से डीप में जाके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, और आपने मेरे साथ भी पॉडकास्ट के पहले मल्टीपल मीटिंग्स की, और हमने मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आज एक्सप्लोर की, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो और अच्छे से डीपर सेंस में समझ पाएँ कि रियल एस्टेट में किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड आई give my best wishes to Mayfair Realty to take it to which you are taking it to the new heights. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.